Good afternoon, everyone. Thank you for joining this live session today. Today, we are speaking about everything that you need to know before you choose solar for your home. We have with us Shreya Mishra. She is the CEO and the co-founder of Solar Square. She is an IIT Bombay alumna, and she has spent years democratizing rooftop solar for Indian households. And no better person than her to sort of, handhold you towards your solar journey. Shreya, thank you for taking the time out to do this for us. Over to you. Awesome. Thanks a lot. आप में से कई लोग काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So without much further ado, we'll get started. Like Sneha said, I'm Shreya. मैं Solar Square की founder and CEO हूँ. आप में से कई लोग, this webinar, a lot of people from our Zerodha family are here. So a warm welcome to the folks, to Zerodha team members who have joined this webinar. And there are some people who are, just Solar Square leads who are also on this webinar. So warm welcome to you as well. First and foremost, I'll do a quick introduction of Solar Square. So Solar Square is a business 10 years in the making. हमने 2015 में रूफटॉप सोलर से ये कंपनी को स्टार्ट किया था एंड पिछले 4 सालों से हम रेसिडेंशियल सोलर में इंडिया की लीडिंग कंपनी है. द पर्पस ऑफ दिस वेबिनार इज टू एजुकेट यू ऑन सोलर. सोलर की एक वेव आई हुई है. एवरीबडी इज लुकिंग टू गो सोलर, बट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हमने कभी अपने घर के लिए एक पावर प्लांट नहीं खरीदा है. सोलर इज नथिंग बट अ मिनी पावर प्लांट विच विल पावर योर होम एंड योर लाइफ for next many years. So solar लेने से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है, so that you can avoid common mistakes and pitfalls, and that you can enjoy great savings and great return, and also do good for the planet while you do that. So in this webinar we're going to discuss everything you need to know before going solar. And today my task is a little a little challenging because I'm talking to the category making company which talks about investments. So I'm talking to people of Zerodha who know way more than me when it comes to investments. But I have a tall job today, but hopefully after this webinar you will appreciate solar as an investment, not just for your pocket. And of course we all know it's a great investment for the planet. So I have a tough job today. If I make any mistakes, please do pardon me. And yeah, without much further ado, let's get started. One thing I want to add before I start this webinar, कि ये webinar, our first primary purpose is to drive education about rooftop solar. सही और गलत सोलार की अवेयरनेस, सोलार के बेनिफिट्स की अवेयरनेस, सोलार लेते समय किन रिस्क्स को अवॉइड करना है, ये सारी अवेयरनेस ड्राइव करना हमारा प्राइमरी पर्सपेक्टिव है. तो आप हमसे सोलर लें या किसी से भी सोलर लें, सोलर लें, हवा हम सबकी एक ही है. यही हवा हम सबको ब्रीथ करनी है अगले कई डेकेड्स तक. और हमारे प्लैनेट के लिए द एनर्जी ट्रांजिशन which will happen through clean power of rooftop solar is very very important. तो हमारा primary purpose is education, so that आप confidently solar जा पाएं. You're going to be a first time solar buyer. ये जो वेव है सोलर की, अगले एक डेकेड में हर घर सोलर होगा, बट एवरी फैमिली विच गोज सोलर विल बी अ फर्स्ट टाइम बायर. तो एज फर्स्ट टाइम बायर्स, एजुकेशन सोलर की होना बहुत जरूरी है. जब हम घर लेते हैं अपने लिए तो हम देखते हैं प्लम्बिंग कैसी है, बिल्डर टाइम कितना लगाएगा, घर में कोई लीगल इशू तो नहीं है, घर का कारपेंट्री कैसा है, घर का मेसनरी कैसा है. सिमिलरली जब हम गाड़ी लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमें डीजल गाड़ी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी चाहिए, गाड़ी का आफ्टर सेल्स नेटवर्क कैसा है, आपकी डीलरशिप कैसी है, गाड़ी में हमें सीट कैसी चाहिए, इंटीरियर्स कैसे चाहिए, बूट स्पेस कितनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. सो जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. यू नो व्हाट टू कीप इन माइंड फॉर थिंग्स दैट यू हैव बीन बाइंग फॉर मेनी डेकेड्स. जैसे जब आप टीवी लेते हैं तो आपको पता है क्या देखना है, गाड़ी लेते हैं तो आपको पता है क्या देखना है. सो आज के इस वेबिनार का मेन पर्पस इज टू गिव यू एजुकेशन ऑन व्हाट टू लुक फॉर when you're going solar. So like, a lot of people have joined us. So let's quickly dive in. Before I begin, there is a Q&A box that is available. Hopefully इस webinar में आपके सारे questions answer होंगे. But please feel free to type your questions in the Q&A section. अगर कोई questions miss हो जाएंगे, so towards the end of the webinar, I'll try to take 4 to 5 questions that our audience has asked. So yeah, let's get started.
नाउ इंडिया में सोलर की लाइक आई सेड लहर आई हुई है, एंड जो जो लोग सोलर के बारे में सोच रहे हैं वो दो कैंप्स में होते हैं। एक कैंप है कि हाँ सोलर के बारे में सुना है, बट एग्जैक्टली सोलर के बेनिफिट क्या है, इज इट रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट, खर्चा कितना आता है, बिजली कितनी बनती है, सेविंग कितनी होती है, आरओआई कितना होता है। सो पीपल हु आर स्टिल ट्राइंग टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस इन कि सोलर सही है। तो अगर आप इस वेबिनार में हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स विल टॉक अबाउट सोलर सही क्यों है, सोलर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, सोलर की इकोनॉमिक्स क्या है। सो विल फर्स्ट कवर दैट सो यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड सोलर के बेनिफिट्स क्या है। दूसरे कैंप में कुछ लोग ये हो सकते हैं जिनको सोलर के सारे बेनिफिट्स पता हैं, जो कुछ महीनों से सोलर जाने के बारे में सोच रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू इवेल्युएट किस कंपनी से लें, क्या देखें, क्या प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, क्या क्वालिटी लेनी चाहिए। सो 40-45 मिनट्स ऑफ दिस वेबिनार विल विल स्पेंड टाइम ऑन सोलर लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। सो सोलर तो सही है, पर सही सोलर क्या है, दैट वी विल डिस्कस, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट। अ गुड पार्ट ऑफ दिस वेबिनार वी आर गोइंग टू डिस्कस गुड वर्सेस बैड सोलर। अगर आपको ये पता है सोलर सही है, तो गुड सोलर लेने के लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा सोलर ही सही है, बुरा सोलर सही नहीं होता। एंड लाइक एनीथिंग, you can go wrong, you can buy the wrong product, wrong quality, wrong after sales, wrong service provider, and can have regret, right? So our agenda is कि आप किसी से भी सोलर लें, आप कॉन्फिडेंटली लें और सही सोलर लें, बिकॉज ओनली दैट हेल्प्स क्लाइमेट चेंज। सही सोलर ही बिजली बनाता है, और सही सोलर ही आपको सेविंग्स देगा, सही सोलर ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देश का भी कम करेगा। सो लेट्स डाइव इन। So first, the first question we'll answer is for those who still don't understand कि सोलर क्यों लेना चाहिए, सोलर के बेनिफिट्स क्या हैं, सोलर क्यों सही है। सो लेट्स डाइव इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ सोलर एज द फर्स्ट थिंग, राइट। सबसे पहले सोलर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। रूफटॉप सोलर जब आप अपने घर या हाउसिंग सोसाइटी के लिए लेते हैं, वो आपको 25 सालों तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। सो द लाइफ ऑफ रूफटॉप सोलर इज 25 years। आपकी जो बिजली है जो आप ग्रिड से लेते हैं, वो हर साल महंगी ही होने वाली है। डीजल, कोल, पेट्रोल, हर कमोडिटी साल दर साल महंगी ही होने वाली है। तो सोलर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो आप एक बार खर्चा करेंगे, 25 साल तक फ्री बिजली तो बनाएंगे ही, बट यू ऑल्सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जैसा कि हमने देखा, महाराष्ट्र ने इस साल 10% बिजली महंगी करी है, जबकि पिछले ही साल 2023 में महाराष्ट्र की बिजली 33% महंगी हुई थी। अभी हाल ही में यूपी में भी बिजली महंगी हुई है, 2023 में वापस महंगे करने के चर्चे आ रहे हैं। सो बिजली एक ऐसी चीज है जो आपके बचपन से लेके आज तक कभी सस्ती नहीं हुई, हर साल महंगी हुई है, तो अगले 20 सालों में भी हर साल महंगी ही होगी। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, दैट्स वन। द सेकेंड, व्हाट इज द एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ सोलर। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लिया हुआ है। आप में से कुछ लोग शायद ये ना जानते हो कि कितने किलोवाट का सोलर मेरे घर के लिए रिक्वायर्ड है, 3, 5, 10। तो रूफटॉप सोलर की जो पावर कैपेसिटी होती है वो किलोवाट या उसकी पावर रेटिंग किलोवाट्स में होती है। और टिपिकल 2-3 BHK जिसमें एयर कंडीशनर ना हो, उसमें यूजुअली 3 किलोवाट का सोलर लगता है। अगर एक एयर कंडीशनर हो, तो जहां जहां तक हमने देखा है 4 किलोवाट का सोलर लगता है। दो एयर कंडीशनर से ज्यादा हो, बड़ा घर हो, घर में लिफ्ट हो, हीटेड स्विमिंग पूल हो, जितना बड़ा घर, जितने ज्यादा अप्लायंसेस, उतना ज्यादा सोलर आपको लगेगा। पर जहां तक हमने देखा है, घरों के लिए 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम सफिशियंट होता है। हम एक 3 किलोवाट सोलर की आज बात करेंगे। आप सभी ने होपफुली ये सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 78,000 तक की सब्सिडी भी दे रही है सोलर पे। हम एग्जैक्ट सब्सिडी भी डिस्कस करेंगे, बट वेरी क्विकली स्पीकिंग, एक हाई क्वालिटी 3 किलोवाट सोलर, जो कि जिसमें कि आफ्टर सेल्स भी इंक्लूडेड हो, वैसा एक 3 किलोवाट सोलर आपको सब्सिडी के बाद 2 लाख रुपए से कम का पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमने कुछ ब्रॉड नंबर्स लेके रखे हैं। आप 2.25 से 2.5 लाख के बीच में एक अच्छा सा 6 पैनल का सोलर, जो कि 3.24 किलोवाट्स का होता है, वो ले सकते हैं। एक एक पैनल लगभग हाफ अ किलोवाट का होता है। तो आप 6 पैनल लेंगे तो 3.25, आप 5 पैनल लेंगे तो 3.25 किलोवाट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये सोलर जो है, ये आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। गिव और टेक 2 लाख रुपए से कम ही लगेगा, लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको, 1.5 से 1.7 लाख के बीच में आपको सब्सिडी के बाद ये 3 किलोवाट का सोलर पड़ेगा। सो लेट्स टेक हायर एंड ऑफ इट, 1.7 लाख रुपीज पोस्ट सब्सिडी आपने सोलर में एक बार में खर्चा किया, और आपने अपने घर में ये 3 किलोवाट का सोलर लगाया। नाउ नेट इन्वेस्टमेंट 1.7 lakh rupees on the, for a good solar with after sales maintenance.
ये सोलार आपको अब 25 सालों तक बिजली बना के देगा। तो अगर आप आज ये 1.7 लाख का इन्वेस्टमेंट ना करें, तो क्या आप जानते हैं कि बढ़ते हुए बिजली के रेट्स के साथ अगले 2 डेकेड्स में, 20 से 25 सालों में, आप लगभग 14 लाख रुपए बिजली के बिल में भरेंगे। सो दी मैथ्स इज वेरी वेरी सिंपल। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.7 लाख का, या 14 लाख रुपए हर साल भरते भरते 14 लाख रुपए बिजली के बिल में भरना चाहेंगे। यहाँ पे हमने बिजली को सिर्फ 3% से महंगा होना ये अज्यूम किया है। जैसे कि मैंने कहा, महाराष्ट्र में 33% बिजली महंगी हुई 2023 में, इस साल 10% महंगी हुई। कोल दुनिया में बढ़ने वाला नहीं है। दुनिया में जो जंग है वो भी कोल की है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैज द डर्टीएस्ट ग्रिड। हमारी ग्रिड हेविली कोल रिलायंट है, अगले 1 डेकेड तक भी कोल रिलायंट रहेगी। तो ये 3% जो मैंने अज्यूम किया है कि अगर आपका बिजली का बिल 3% से महंगा हो तो आपको 14 लाख भरने हैं। अगर यही बिजली का बिल आपका 10% से महंगा हो, सो ऑल ऑफ यू आर savvy, come from the investment background, you can do the compounding math. बेसिकली हर 4 से 5 सालों में ऐसा मुझे लगता है कि आपकी बिजली लगभग 2 गुना तक महंगी हो सकती है। सो यू विल प्रोबेबली सेव 20 लाख रुपीज विथ कोल शॉर्टेज एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ कोल। बट इन द वेरी वेरी कॉन्जर्वेटिव केस, अगर बिजली सिर्फ 3% से भी महंगी होती है, तो ये 1.7 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको 14 लाख रुपए का खर्चा करने से बढ़ाएगा। सो सिंपल मैथ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम ऑफ सेविंग्स। इंडिया इज वेरी वेरी बिग ऑन रूफटॉप सोलर। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। जो भी देश ज्यादा ग्रो करता है, बिजली की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट उतनी ही तेजी से ग्रो करती है। सो एज अ कंट्री, वी डू नॉट हैव इनफ कोल टू पावर द नेशन, एंड हेंस इंडिया विल बी primarily all the new power in India will come from rooftop solar. So it is no surprise that our Prime Minister himself, few months back, launched a very, very big announcement for rooftop solar. This scheme is called Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana. इस स्कीम के रहते 1 करोड़ घरों के लिए सब्सिडी का बजट कैबिनेट में अप्रूव किया गया है। दिस इज अ बजट ऑफ रफली $9 billion, 75,000 करोड़ का ये सब्सिडी का बजट है। सो ये जो सब्सिडी है ये 1 करोड़ घरों के लिए है। अभी तक इंडिया में पिछले 10 सालों में सिर्फ 10 लाख घरों ने सोलर लिया है, लेकिन अगले 3 से 4 सालों में 1 करोड़ घरों के सोलर जाने का टारगेट है। इनफैक्ट इंडिया में इतनी बड़ी सोलर की लहर आई है कि पिछले 10 सालों में सिर्फ 10 लाख घर सोलर गए हैं। करंटली इन इंडिया, every 30 days 1 लाख होम्स आर गोइंग सोलर। सो 1 करोड़ कोई बड़ा नंबर नहीं है, हम 100 करोड़ का देश है। ये 1 करोड़ का जो स्कीम है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। Already 1 crore plus registrations on the National Solar Portal have happened. This is a time bound scheme, so this is a great time to go solar, take benefit of this subsidy scheme. And I'm sure आप में से कई लोग ऑलरेडी इसीलिए इस वेबिनार में आए हैं क्योंकि आपने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में सुना होगा और अब आप जल्दी अपने घर पे सोलर लगाना चाहते हैं। सो हाउ मच एग्जैक्टली इज दी सब्सिडी? तो सोलर की जो सब्सिडी है वो स्लैब्स में होती है। इट डिपेंड्स ऑन आप कितने किलोवाट का सोलर लेते हैं। सो अगर आप एक पहले किलोवाट के सोलर पे 30,000 रुपीज की सब्सिडी है, दूसरे किलोवाट पे भी 30,000 रुपीज की सब्सिडी है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड किलोवाट टोटल पे 60,000 सब्सिडी, तीसरे किलोवाट सोलर के लिए 18,000 रुपए की सब्सिडी है। सो 1 and 2 30,000, थर्ड किलोवाट 18,000, टोटल 3 किलोवाट हम ऐड करेंगे तो 30 + 30 + 18 78,000 रुपीज की सब्सिडी है। ये सब्सिडी 78,000 रुपीज पर कैप्ड है। अब आप 3 किलोवाट के ऊपर 4, 5, 10, 15 जितना भी लेना चाहें, ये 78,000 रुपीज की सब्सिडी यहाँ पर आके कैप हो जाती है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम। जैसा कि मैंने कहा कि एक 3 किलोवाट सोलर बिफोर सब्सिडी लगभग आपको जीएसटी, आफ्टर सेल सर्विस, गवर्नमेंट परमिट, सब कुछ जोड़ के एक हाई क्वालिटी सोलर विथ जीएसटी एज वेल एज 5 years ऑफ आफ्टर सेल सर्विस आपको गिव और टेक 2.35 से 2.45 लाख का पड़ेगा। और उस पर जब आप 78,000 की सब्सिडी लगाएंगे तो यू कैन डू द मैथ कि आप 1,70,000 के आसपास आप 3 किलोवाट का सोलर ले सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू गो सोलर एंड अवेल द सब्सिडी। नाउ बिकॉज हमारे काफी सारे अटेंडीज आज जीरोधा से हैं, एंड लाइक आई सेड, मुझसे कुछ गलती हो जाए, यू गाइस आर द एक्सपर्ट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, बट सोलर इज अ फैंटेस्टिक आईआरआर। एंड सोलर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको एवरी मंथ फॉर 25 years बिजली के बिल में बचत देगा। यू रियलाइज द बेनिफिट ऑफ सोलर एवरी मंथ इन योर बिल। सो जो एक्स आईआरआर है सोलर का, वो इंडिया में 22 से 30% के बीच में होता है। नाउ कुछ लोग ये सोच सकते हैं इतनी बड़ी रेंज क्यों है, मुझे कैसे 30% का आईआरआर मिले? सो मैक्सिमम आईआरआर के लिए
दो चीजों का ध्यान रखना है। गुड सोलार दैट प्रोड्यूसेस इट्स पीक पावर। इंडिया में बहुत सारा सोलार गलत क्वालिटी का, पुअर वर्कमैनशिप का और बिना आफ्टर सेल्स के बेचा जाता है। जब आपका सोलर प्रॉपरली डिजाइंड ना हो या मेंटेन्ड ना हो, आज हम डिटेल में उसकी बात करेंगे, आपका परफॉर्मेंस काफी नीचे तक गिर सकता है। इनफैक्ट सिर्फ 6 महीनों में एक अनमेंटेन्ड सोलर का परफॉर्मेंस 30% से गिर सकता है। इसके ऊपर अगर आपने बेस्ट क्वालिटी सोलर लगाया, 6 महीने मेंटेन नहीं किया, जिसमें पैनल की डीप क्लीनिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चेक्स, सारी ही मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो 6 महीने में आपकी बिजली का परफॉर्मेंस गिर जाएगा। जैसा कि आप सभी समझते हैं, ये जैसे कि फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देते हैं एंड दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, सोलर का रिटर्न सिंपली एंड सिंपली डिपेंड्स ऑन कितनी बिजली बनी। सो आपका सोलर कितना अच्छा परफॉर्म करता है, वो ऑपरेशंस एंड आफ्टर सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर रियली डिटरमाइंस योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो एक वो पैरामीटर है जिससे आपका रिटर्न इंपैक्ट हो सकता है। आज हम समझेंगे कि आप अपने घर के लिए हाईएस्ट रिटर्निंग, हाईएस्ट आरओआई वाला सोलर कैसे ले सकते हैं। द सेकेंड थिंग दैट विल इम्पैक्ट योर रिटर्न इज कि सोलर की कॉस्ट आप चाहे जम्मू कश्मीर में लें या कन्याकुमारी में, कलकत्ता में लें या गुजरात में, सोलर की कॉस्ट रफली इंडिया में सिमिलर सी पड़ती है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिस वजह से कुछ गवर्नमेंट परमिट चार्जेस सिटी बाय सिटी अलग हो सकते हैं। हर सिटी का कुछ जो कंस्ट्रक्शन होता है सोलर का, उसमें कुछ कॉस्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट ब्रॉडली 10% ऊपर नीचे की रेंज में सोलर पूरे इंडिया में है। लेकिन आपकी सेविंग जो है, सोलर बिजली जो बनाएगा, वो सेविंग आपकी बिजली के रेट पे डिपेंड करेगी। यानी कि अगर आपने सोलर से बनाई महीने में 300 यूनिट और आपका बिजली का बिल, बिजली का रेट आपके शहर में है 8 रुपए, तो 300 यूनिट इंटू 8 रुपए, वो आपकी सेविंग हो गई। और वहीं अगर आपके शहर में बिजली का रेट है 10 रुपए, या फिर जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे महंगी बिजली है, अगर आपका बिजली का रेट है 15 रुपए, तो वही 300 यूनिट आपको एक तरफ 4,500 की सेविंग देंगी, और लोअर एंड पे जिस स्टेट में टैरिफ कम है वहां 2,500 रुपए की सेविंग देगी। तो आपके स्टेट के बिजली के रेट से भी आपका आईआरआर वेरी करता है। बल्क ऑफ इंडिया में 22 से 24% का आईआरआर फॉर अ गुड परफॉर्मिंग सोलर आता है, क्योंकि जो बिजली का रेट है वो लगभग 8 रुपए के आसपास ही पड़ता है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में। यूनियन टेरिटरीज एक एक्सेप्शन है जहां पे बिजली 6 रुपए की है। बट अगर आप गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली, ये सारे ही एरियाज लें, तो जैसे ही आप 300-400 यूनिट की बिजली कंज्यूम करते हैं, तो आपका जो रेट है वो 7.5 से लेके 9, 9.5 रुपए के बीच में पड़ता है। महाराष्ट्र एक बड़ा एक्सेप्शन है, जहां पे बिजली का जो टैरिफ है वो 12 रुपए से लेके 17, 18, 20 रुपए तक भी जा सकता है। सो नेचुरली स्पीकिंग महाराष्ट्र में सोलर का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है। सो दोज आर द टू फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन दिस रेंज। लाइक वी सेड, दिस इज क्लियरली बेटर देन जो लास्ट 10 ईयर्स में म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स का इंडिया में रिटर्न रहा है, एवरेज 14%। फिक्स डिपॉजिट करंटली 7, 7.5% के चल रहे हैं। गोल्ड मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि पिछले एक साल में काफी क्रेजी रिटर्न रहा है गोल्ड का, बट अगर हम 20 साल का पीरियड देखें तो गोल्ड भी एवरेज 5, 7% का ही रिटर्न देता है। सो हेंस सोलर इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, लाइक आई सेड। हाउएवर, एक प्रो टिप जो मैं देना चाहती हूँ, कमोडिटी इन्फ्लेशन फ्यूचर में हो सकता है। जैसे कि बिजली महंगी होगी, सोलर भी थोड़ा महंगा हो सकता है। सेकेंडली, सब्सिडी भी 1 ही करोड़ घरों के लिए है, हो सकता है 1 करोड़ के बाद ये सब्सिडी को कम किया जाए या ये कंप्लीटली हटाई भी जा सकती है। सो द बेस्ट टाइम टू गो सोलर इज टुडे। 2015 से पहले, 2020 से पहले लोग वेट करते थे क्योंकि हर साल सोलर सस्ता होता था, तो लोग सोचते थे इस साल नहीं अगले साल लेंगे सोलर और सस्ता हो जाएगा। प्लीज नो कि 2020 पर सोलर की टेक्निकल कमर्शियल मैच्योरिटी ऑफ द एसेट क्लास हैज रीच्ड। ग्लोबली सोलर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 2020 के बाद क्रैश नहीं हुई है। 2020 से जैसे हर कमोडिटी इन्फ्लेशन के साथ 5-6% सालाना महंगी होती है, वैसे ही सोलर भी अब टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी पर है, और सोलर अब कोई कोई चमत्कार नहीं होने वाला, सोलर और ज्यादा सस्ता नहीं होने वाला। इट हैज रीच्ड इट्स मैच्योरिटी। सोलर इज द न्यू ऑयल। दुनिया की चीपेस्ट पावर अब सोलर से बन रही है, एंड सो नाउ इज द बेस्ट टाइम टू इंस्टॉल सोलर। राइट, सो आई होप दैट इज आंसर्ड क्वेश्चन फॉर पीपल इन द फर्स्ट कैम्प कि सोलर क्यों लेना चाहिए। सो इफ यू आर कन्विंस्ड कि सोलर अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एंड लाइक आई सेड, ये हमने सिर्फ कमर्शियली अच्छा इन्वेस्टमेंट डिस्कस किया है, सोलर इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट नेचुरली फॉर द प्लैनेट एज वेल। एक मैथ जो मैं बताना चाहूंगी, अगर आप अपने घर पे 3 किलोवाट का सोलर लगाते हैं
तो पर किलोवाट आप लगभग सालाना 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वातावरण से कम करते हैं। 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा से कम करना इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 15 मैच्योर ट्रीज। तो अगर आप अपने घर की छत पे 3 किलोवाट का सोलर लगाएं, तो आप हर दिन उसे देख के प्राउडली ये बोल सकते हैं कि ये 3 किलोवाट का सोलर नहीं, ये मैंने 45 मैच्योर ट्रीज अपने घर की छत पे लगाई हैं। वहीं अगर आप 10 किलोवाट का सोलर लगाएंगे, तो वो 150 मैच्योर ट्रीज के बराबर है। So it is very, very important. That is why India is so big on solar. So the environmental benefit, of course, we all understand it produces no fumes, it's clean electricity, it makes no noise. And solar is what India needs to move away from our dirty grid, which is largely through coal-based electricity. So moving on, how to choose the right solar for your home. This is the most important section. Uh, सो लाइक आई सेड, सोलर तो सही है, बट सही सोलर क्या है, राइट? घर लेना, नया घर लेना अच्छी बात है, लेकिन गलत बिल्डर से ले लिया, पुअर मेसनरी, पुअर प्लम्बिंग, पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वाला ले लिया, बिल्डर ने पैसे ठग लिए, बिल्डर ने 2 साल बाद घर बना के दिया, राइट? घर लेना अच्छी बात है, लेकिन सही घर लेना, सही गाड़ी लेना, सही सोलर लेना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एवरेज एक परिवार 3 से 5 किलोवाट सोलर के लिए 2 से 3 लाख रुपए का सोलर में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इट इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट विथ 20% प्लस रिटर्न्स। बट अगर गलत कर लिया, तो आपको रिपेयर के एक्सपेंसेस आ सकते हैं। लाइक आई सेड, सिर्फ 6 महीने में पावर प्रोडक्शन 30% से गिर सकता है। तो जो आपका 20% का आईआरआर है, वो गया पानी में, और आपका काफी ज्यादा रिटर्न कम हो सकता है। एक चीज जो मैं बताना भूल गई, जो सोलर का इन्वेस्टमेंट है उसका पे बैक पीरियड क्या है। ज्यादातर वन टाइम इन्वेस्टमेंट चीजों में हम ब्रेक इवन या पे बैक पीरियड देखते हैं कि जो मैंने अगर सोलर में 2 लाख रुपए खर्च किए, तो कितने सालों में ये 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाएगा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग्स या बिजली बिल की बचत से। तो इंडिया में सोलर का 3 से 5 साल के बीच में ब्रेक इवन है। तो अगर आप एवरेज, अगर मैं 4 साल पकड़ूं, तो अगर आप 2 लाख रुपए में आपका 3.5 4 किलोवाट का जो भी सोलर सब्सिडी के बाद आप जब लेते हैं, तो वो सोलर आपको सालाना 4 किलोवाट सोलर आपको महीने की ब्रॉडली 4,000 रुपए की सब्सिडी, 4,000 रुपए की बिजली बना के देगा। सो 4 किलोवाट सोलर मंथली 4,000 रुपए की बिजली में बचत, यानी सालाना 48 से 50 हजार रुपए, 48 to 50,000 rupees in savings. And so your initial investment of 2 lakh rupees basically will break even in 4.5 years broadly. So that's the break even of solar. 25 साल तक it will make you free electricity, and it breaks even in less than 5 years. So I just wanted to cover that. However, if it underperforms, your 4 year, 5 year break even can go to 6 or 7 years. You can do the math. If it produces 30% lesser power in just 6 months, effectively your break even is elongated by 30%. यानी 4 साल का जो ब्रेक इवन है वो 5.25 साल, 5.25 साल पे चला जाएगा. So and in 2 years it can underperform a lot more. So your break even can be high. आपको रिपेयर के एक्सपेंसेस आ सकते हैं. So let's learn how to avoid that. So सही सोलर क्या है? इसमें मैं सोलर स्क्वायर के क्रेडेंशियल्स की ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, बट जस्ट वन थिंग, एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट की लेनी चाहिए. सो एडवाइस लेने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है. So like I said, for 10 years, we have been solarizing homes, housing societies, as well as corporates across India. हमारा 150 megawatt of rooftop solar experience है. पूरे इंडिया देश में हार्डली ऐसी 10 कंपनीज है जिनका इतना रूफटॉप सोलर एक्सपीरियंस है. सो वी आर टॉप 10 in rooftop solar companies of India. And residential mein, we have more than 16,000 homes that we have powered. With that, we are numero uno, number one and only company in India to have that kind of residential solar experience. We do not have any middleman. हमारी कोई शाखा नहीं है, कोई डीलर फ्रेंचाइजी नहीं है. When you buy from Solar Square, you directly buy from the brand. So these 16,000 homes that we have powered are all powered directly by Solar Square. आपका आफ्टर सेल्स, आपका इंस्टॉलेशन, आपका डिजाइन, आपकी सोलर कंसल्टेशन, सब कुछ सोलर स्क्वायर से होगी. लास्ट, वी आर ऑल्सो द मोस्ट रिव्यूड सोलर कंपनी इन इंडिया. हमारी बॉम्बे की आप गूगल रेटिंग देख सकते हैं, सोलर स्क्वायर बॉम्बे. इट हैज मोर देन 4,000 रिव्यूज एंड वी आर ऑल्सो रेटेड 4.8. With that, we are the most reviewed solar company in India. So that is that. Like I said, proud to have solarized more than 116,000 homes. Along with that,
हाउसिंग सोसाइटीज भी सोलर लेती हैं। सो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी या आरडब्ल्यूए है वो भी अपने छत के लिए, आपकी सोसाइटी की छत के लिए सोलर ले सकती है। दैट सोलर इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल होम ओनर। हाउसिंग सोसाइटी की छत पे व्हेन वी इंस्टॉल सोलर, इट्स फॉर द कॉमन एरिया अमेनिटीज विच इज योर लिफ्ट, पंप, स्ट्रीट लाइट, अगर आपकी सोसाइटी में जिम खाना हो, कैफेटेरिया हो, सो सारी कॉमन एरिया का पावरिंग आप रूफटॉप सोलर से इन अ सोसाइटी कर सकते हैं। We are number one in India with maximum number of homes solarized. We are also number one in India with over 170 housing societies solarized. So that is that. Last important, one tidbit: every 40 minutes, one home in India is currently going solar with Solar Square. So, we are very, very actively working with families and homes to help them make the switch to solar. नाउ, सही सोलर लेने के लिए व्हाट आर द क्वेश्चंस यू विल आंसर? सो सबसे पहले हम ये सवाल आपको ये आएगा, हाउ मेनी किलोवाट ऑफ सोलर डू आई नीड? मेरे घर की पावर रिक्वायरमेंट के लिए मुझे कितना बड़ा सोलर लेने की जरूरत है? फर्स्ट वील आंसर दैट। सेकंड क्वेश्चन जो आपको आएगा कि ठीक है, मुझे 3-5 किलोवाट सोलर चाहिए, इसकी कॉस्ट क्या आएगी? थर्ड क्वेश्चन जो आपको आएगा वो ये है कि ठीक है, मुझे सोलर समझ में आ गया, अब मैं किस कंपनी से लूं? एंड लास्ट इज कि इसको फाइनेंस करने का कोई तरीका है क्या, ईएमआई मिलेगा क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? तो अगर आप भी इस तरीके से अपनी सोलर जर्नी के बारे में सोच रहे हैं कि कितने किलोवाट सोलर और कितने में मिलेगा, तो प्लीज ये गलती मत करिएगा। कितने किलोवाट सोलर और कितने में मिलेगा ये गलत है। जब हम गाड़ी लेने जाते हैं हम ये नहीं बोलते कितने में दी, हम पहले डिसाइड करते हैं सेडान चाहिए, हैचबैक चाहिए, एसयूवी चाहिए, डीजल गाड़ी चाहिए, ईवी चाहिए, बूट स्पेस कितनी चाहिए, ब्रांड कौन सी चाहिए, राइट? सो किसी भी चीज की प्राइस पूछने से पहले, ये सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है कस्टमर्स करते हैं, पैनल कौन सा दिया, ठीक है अडानी का है, बढ़िया, अब बताओ भाई कितने में दिया। ये गलती मत करिएगा। सोलर एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है जिसमें 70 से ज्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं। हर जैसे आपके काफी सारी गाड़ी को भी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे सोलर को भी रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिना ये समझे कि सोलर में मुझे लेना क्या है, सीधे उसका प्राइस मत पूछेगा, क्योंकि सस्ते की कोई सीमा नहीं है। कितना खराब क्वालिटी लेंगे उतना सस्ता सोलर आपको मिल सकता है। बट नो मैटर हाउ चीप इट इज, अ बैड क्वालिटी सोलर विथ नो आफ्टर सेल्स अल्टीमेटली कॉजेज यू अ फाइनेंशियल लॉस। तो सोलर लेते समय अगर आपने बैड क्वालिटी ले लिया तो इसका पुअर परफॉर्मेंस, आफ्टर सेल्स के इशू, ब्रेकडाउन, रिपेयर के खर्चे, आपको रिपीटेडली खर्चे आते रहेंगे। आपकी सेविंग्स कम 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 होती रहेगी सालाना, और अल्टीमेटली वो जो आपने शायद 20,000 रुपए, 30,000 रुपए आज सस्ता सोलर लेने में बचा लिए, वो आपको लॉन्ग रन में फाइनेंशियल लॉस ही कॉज करेंगे। आई एम सीइंग अ फ्यू पीपल आर रेजिंग द हैंड। सर, आई जस्ट लाइक टू से देयर इज अ Q&A बॉक्स। प्लीज आपके क्वेश्चंस वहां पे लिखिएगा, संतोष जी, लक्ष्मण जी, श्रीनिवास जी। वी विल नॉट बी इंटरप्टिंग द वेबिनार इन बिटवीन। लगभग 35 मिनट्स के बाद हम जो क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए होंगे वो इस Q&A बॉक्स के थ्रू आंसर करेंगे। सो प्लीज फील फ्री टू टाइप योर क्वेश्चंस। रियल टाइम हमारी टीम भी Q&A बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देगी। So, like I said, no matter how cheap it is, a bad solar system ultimately causes you a financial loss. Solar लेते समय आपको कॉस्ट मिनिमाइज नहीं करनी है, आपको आरओआई मैक्सिमाइज करना है। अगर 10% बेटर क्वालिटी में इन्वेस्ट करने से आपका आरओआई 20, 25, 30% ज्यादा आ सकता है, आपके रिपेयर के खर्चे कम हो सकते हैं, तो इट इज वाइज टू गो फॉर दैट 10% हायर इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी, राइट? सो कॉस्ट मिनिमाइजेशन नहीं, हम आरओआई मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। उसके लिए आफ्टर यू डिसाइड आपको कितने किलोवाट सोलर चाहिए, जो कि भी सोलर स्क्वायर के सोलर कंसल्टेंट्स आपको एडवाइस करेंगे। when you register on our website or on our number 9830003000, आप हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट पर भी अपना इंक्वायरी रजिस्टर कर सकते हैं। यू विल गेट अ फ्री सोलर कंसल्टेशन फ्रॉम सोलर स्क्वायर। हमारे एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स आपके घर विजिट करेंगे, आपके बिल को, आपकी बिजली की कंजम्पशन को समझेंगे, आपके रूफ की स्पेस लेआउट को समझेंगे, और आपको वही गाइड करेंगे कि आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए हाउ मच सोलर डू यू नीड। सो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, the second question to ask is what should I look for in a good solar solution? Once you have understood मुझे लेना क्या है, क्या क्वालिटी, क्या सर्विस, उसके बाद you should ask सबसे सस्ता ये क्वालिटी मुझे कौन देगा। सो अच्छा सोलर समझने के बाद please go out finding the cheapest service provider, the lowest cost for it, but important is to understand what do I look for in a good solar solution. आप में से कई काफी सारे लोग थोड़ा लेट आए हैं। आज के हमारे वेबिनार में एजुकेशन इज आवर प्राइमरी पर्पस। आप सोलर स्क्वायर से सोलर ले या किसी और से ले, आर एजेंडा इज कि जब लाखों करोड़ों लोग इंडिया में सोलर लगाएं,
तो उन्हें एजुकेशन और अवेयरनेस हो कि सही सोलर क्या है, वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकें. सो वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट दैट. आई जस्ट वांटेड टू रिपीट इट फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स. वंस यू हैव डिसाइडेड कि क्या सोलर में लेना है, किस प्राइस पे, then you can talk to companies and figure out the best price that is available. So how should you choose the right solar company? सोलर इंस्टॉलर या आपकी सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी ही आपको सर्विस देगी, आपकी वारंटी क्लेम्स में हेल्प करेगी, उनकी एक्सपर्टीज पे आप रिलाय करेंगे. जब आप गाड़ी लेते हैं तो आप खुद उसकी इंजीनियरिंग नहीं करते, आप उस मैन्युफैक्चरर की सेफ्टी, एक्सपर्टीज, क्वालिटी, वर्कमैनशिप पे रिलाय करते हैं. वैसे ही सोलर इंस्टॉलेशन के लिए रिलायबल एक्सपीरियंस्ड कंपनी को आप कैसे चूज कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू टू अंडरस्टैंड आप जिस कंपनी से सोलर ले रहे हैं उसका एक्सपीरियंस अच्छा है नहीं है. वील टॉक ऑफ टिप्स अबाउट दैट एज वेल. एंड लास्ट, हाउ कैन यू फाइनेंस इट. सो फोकस ऑन गेटिंग अ गुड सोलर सोल्यूशन. अगर जीरो फेलियर और हाई परफॉर्मेंस रहा तो आपका इन्वेस्टमेंट आरओआई मैक्सिमाइज होना ही होना है. एंड यू विल अवॉइड यू विल अवॉइड कि हाँ सस्ता तो लिया पर आरओआई खराब आया. थोड़ा अच्छा सोलर लीजिए और आरओआई मैक्सिमाइज करिए. सो फर्स्टली, हाउ मेनी किलोवाट ऑफ सोलर डू आई नीड, लेट्स डाइव इनटू दैट. आपके घर पे जो सोलर रिक्वायर्ड है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है. नंबर 1, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि आपके फैमिली मंथली एवरेज कितनी बिजली को कंज्यूम करती है. आपके बिजली के बिल में यूनिट्स लिखा हुआ आता है कि कितना यूनिट्स आपने कंज्यूम किया. 1 किलोवाट सोलर इंडिया में 1300 से लेके 1450 यूनिट्स पर ईयर तक बनाता है. ये पीक परफॉर्मेंस है ऑफ अ मेंटेन्ड सोलर. इस झांसे में मत आइएगा कि हर सोलर इतनी ही बिजली बनाता है. बट रेटेड पीक परफॉर्मेंस इंडिया में जो है वो 1300 से लेके 1450 किलोवाट, 1450 यूनिट्स पर किलोवाट पर ईयर, इस बेसिस पर आता है. ये पीक परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है? ये आपके शहर के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सोलर इरेडिएशन पे डिपेंड करता है. ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके शहर में हवा में पोल्यूशन या एरोसॉल्स कितने हैं. ये आपको समझने की जरूरत नहीं है. आवर सोलर कंसल्टेंट विल टेल यू कि आपकी सिटी और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का रेटेड पीक परफॉर्मेंस कितना है. सो मोस्ट सिटीज इन इंडिया आर क्रॉसिंग 1400 यूनिट्स, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, बैंगलोर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सॉरी यूपी में, लखनऊ में थोड़ी कम बिजली बनती है क्योंकि वहां पे फॉग है, तो लखनऊ विल बी क्लोजर टू 1300. दिल्ली और बॉम्बे शहर के अंदर हवा में पोल्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे भी थोड़ी सी बिजली कम बनती है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि चेरापूंजी या लेह लद्दाख में ठंड है, विंटर है, वहां बिजली कम बनती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बारिश हो या ठंड हो, सोलर इरेडिएशन पे चलता है और सोलर सभी जगहों पे अच्छे से परफॉर्म करता है. लेकिन जहाँ पे फॉग या क्लाउड कवर थोड़ा रिलेटिवली साल में ज्यादा दिनों के लिए रहता है, वहां थोड़ी सी बिजली कम हो सकती है. बट मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये 1400 यूनिट्स क्रॉस करता है, बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस दैट आई जस्ट मेंशन. सेकंड, सोलर लेते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है कि आपका सोलर आपके सैंक्शन लोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सैंक्शन लोड या मंजूर भार या कनेक्टेड लोड, या आपके बिजली के बिल पे एक नंबर लिखा हुआ होगा जो हमारे सोलर कंसल्टेंट्स चेक करेंगे. आपका जो, अगर आपको 5 किलोवाट सोलर लेना है लेकिन आपके फैमिली के घर का सैंक्शन लोड सिर्फ 2 किलोवाट है, तो उससे हमें बढ़ा के 5 किलोवाट करना होगा. लोड चेंज लगभग इंडिया में 50% घर सोलर लेने के लिए करते हैं, क्योंकि जो 10 साल से पुराने घर होते हैं उस जमाने में 1-1 किलोवाट के ही सैंक्शन लोड हुआ करते थे. ये सैंक्शन लोड एनहांसमेंट आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोलर स्क्वायर टीम ही कंप्लीट सैंक्शन लोड एनहांसमेंट का भी ध्यान देगी, लेकिन इस पॉलिसी का हमें ध्यान लेना पड़ता है और इसे हम बढ़ाने का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम ही करते हैं. इट्स फेयरली सिंपल. लगभग 1 से 2 हफ्ते में मोस्ट शहरों में ये सैंक्शन लोड इंक्रीज हो जाता है. थर्ड, रूफटॉप स्पेस. आपके छत पे शैडो फ्री स्पेस कितनी है? सोलर हम शैडो फ्री स्पेस में ही लगा सकते हैं. ज्यादातर मैंने देखा है कि एवरेज जो परिवार है वो 4-5 किलोवाट सोलर लेते हैं. 1 किलोवाट सोलर के लिए हमें 75 to 80 स्क्वायर फुट ऑफ शैडो फ्री स्पेस की जरूरत होती है. तो अगर आप 10 किलोवाट लेते हैं तो आपको 750 से 800 स्क्वायर फुट, 4 किलोवाट के लिए लगभग 300 to 400 स्क्वायर फुट की ही जरूरत पड़ती है. अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप 100 किलोवाट सोलर लेना चाहते हैं तो लगभग आपको 8000 स्क्वायर फुट की जरूरत पड़ेगी. बट क्योंकि ज्यादातर आज हमारे अटेंडीज हमारे साथ इंडिविजुअल होम ओनर्स हैं, तो लगभग आप 3 या 5 किलोवाट सोलर लेंगे तो 3 किलोवाट पे लगभग 250 स्क्वायर फुट, 4 किलोवाट पे 300 to 350 स्क्वायर फुट, 5 किलोवाट पे 400 to 450 स्क्वायर फुट. तो स्पेस यूजुअली अवेलेबल होती है. एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है, अनाड़ी इंस्टॉलर्स, कई बार कस्टमर्स को अवेयरनेस नहीं होती, उनकी छत पे शैडो के अंदर सोलर लगा जाते हैं. नाउ सोलर सनलाइट से चलता है,
अगर आप इसे शैडो में लगाएंगे तो आप आपके इन्वेस्टमेंट को डाउन द ड्रेन फ्लश कर रहे हैं। तो शैडो की एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि आज अगर किसी छत के पार्ट पे शैडो नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि 365 डेज उस एरिया में शैडो नहीं आएगी। शैडो की एनालिसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है, जिससे कि आपके लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे, आपके घर पे सन और अर्थ की लोकेशन और उससे मूविंग जो शैडो आएगी, उसे हम 365 डेज के लिए, सनराइज टू सनसेट के लिए पूरा स्टिमुलेशन हम उसका सॉफ्टवेयर में करते हैं, और उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं शैडो फ्री स्पेस कितनी है। कई इनएक्सपीरियंस सोलार कंपनीज ये एनालिसिस नहीं करती हैं, अंदाजन देखती हैं, हाँ हाँ कहीं धूप नहीं है यहाँ लगा दो। तो प्लीज, सोलर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं तो साइंटिफिक 3D डिजाइन होना सोलर की बहुत जरूरी है, जिसमें 365 डेज की अर्थ सन के मूवमेंट के हिसाब से शैडो की एनालिसिस की जाएगी। आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। व्हेन आवर सोलर कंसल्टेंट विजिट्स योर होम, ही विल डू अ रूफ सर्वे, he will measure your roof as well as all the shadow casting objects. Our design team will put it into simulation, और उसके बाद हम ड्यूरिंग द सोलर कंसल्टेशन आपको आपकी रूफ पे सोलर की 3D डिजाइन भी देंगे। बट ये शैडो एनालिसिस प्लीज इसे इंश्योर करें। लाइक आई सेड, आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। इफ यू चूज अ गुड सोलर कंपनी, दे विल डू दिस फॉर यू, एंड 3D डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंदाजन कहीं भी सोलर लगा लिया, आज धूप नहीं है, आज शैडो नहीं है इसलिए लगा लिया, वो गलती कई अनाड़ी कंपनीज करती हैं। इंडिया में लगभग 20-25% घरों पे सोलर शैडो में लगा हुआ है। तो अगर आपको ये लगता है कि अरे इतना भी कोई बेवकूफ बनाएगा क्या, अनफॉर्चुनेटली हर 4 में से एक कस्टमर को बेवकूफ बनाया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसर्च है कि 20-25% रेजिडेंशियल सोलर बिना शैडो एनालिसिस के शेड्स में लगाया गया है। इससे आपका बिजली का प्रोडक्शन नेचुरली कम होना ही है, क्योंकि पैनल जब शैडो में है तो सनलाइट आनी नहीं है उस पर, सनलाइट उस पर आएगी नहीं तो बिजली बनेगी नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट शैडो, सोलार की फिजिक्स ऐसी होती है कि अगर पैनल के ऊपर हार्ड शैडो हो तो सनलाइट से बिजली बनाने की जगह हीट पैदा करता है। हीट पैदा करते करते आप शायद ये सोचे यार मेरे ना वो पैनल के सिर्फ कोने कोने में शैडो है। हार्ड शैडो, सॉफ्ट शैडो इज अ डिफरेंट थिंग, ये भी सॉफ्टवेयर से ही हम पता करते हैं। लेकिन हार्ड शैडो अगर आपके पैनल पे पड़े, वो 5-10% से ज्यादा अगर हार्ड शैडो पड़े, तो एक सर्टन थ्रेशोल्ड के बाद आपके पैनल में हीट पैदा होते होते आपका सोलर पैनल जल सकता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट ना तो परफॉर्मेंस कम, आपका पैनल भी जल जाएगा। पैनल जल गया बिकॉज ऑफ शैडो तो आपको उस पर वारंटी नहीं मिलेगी। एक एक पैनल पे आपको 12 से 17 हजार रुपए तक का खर्चा आ सकता है, इंक्लूडिंग डिलीवरी, सर्विस, इंस्टॉलेशन। तो ये गलती ना हो, इसके लिए एक्सपीरियंस इंस्टॉलर एंड शैडो फ्री 3D डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर सिमुलेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट शुड आई लुक फॉर इन अ गुड सोलर सोल्यूशन? सो अब इसमें डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले हम क्विकली कंपोनेंट समझेंगे सोलर के। आपने सुना ही होगा, पैनल होता है, इन्वर्टर होता है, स्ट्रक्चर होता है। we'll quickly cover the top 4 components. then हम समझेंगे मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। वो ढांचा आपने देखा होगा, सभी लोग सोलर का परगोला या सोलर का शेड बनवाते हैं। तो जिस माउंटिंग स्ट्रक्चर पे आपका सोलर पैनल लग रहा है, उसकी स्ट्रेंथ और वर्कमैनशिप। स्पाइन अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो दिमाग कितना भी अच्छा हो, कोलैप्स होना ही है। सो आपका मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मैटर करती है। उसके बाद डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, सब कुछ अच्छा लिया लेकिन बिना डिजाइन इंजीनियरिंग के असेंबल कर दिया, राइट? एक इंजन और यू नो चक्का और चैसी और बॉडी देने से कोई गाड़ी नहीं बना सकता। गाड़ी बनाने के लिए उसकी डिजाइन इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज लगती है। सो सारे सही कंपोनेंट्स, बट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग गलत, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट डाउन द रेन जा सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कस्टमर्स को बोलती हूँ, सिर्फ ये देखना कि हाँ अडानी का पैनल दे रहा है तो सब ठीक होगा। अडानी का पैनल डज नॉट मीन अ गुड सोलर सिस्टम। डिजाइन इंजीनियरिंग मैटर्स। वहां पे आपका सोलर इंस्टॉलेशन पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंजन लेने से गाड़ी अच्छी नहीं बन जाती, पूरी डिजाइन इंजीनियरिंग वर्कमैनशिप इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डू नॉट बी अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन कि सोलर पैनल इक्वल टू रूफटॉप सोलर। सोलर एक बड़ा सोल्यूशन है जिसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे घर लेते समय सिर्फ ईंट अच्छी लेने से घर अच्छा नहीं बन जाता, राइट? आपको बहुत चीजों का सोचना पड़ता है। लास्ट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। लाइक आई सेड, आप पीएचडी नहीं कर सकते। आज मैं आपको अवेयर जरूर करूंगी सोलर के सही गलत के बारे में, लेकिन अच्छे इंस्टॉलेशन पार्टनर को चूज करेंगे तो और हजार चीजें जो टेक्निकल एक्सपर्टीज वाली चीजें हैं जो आज मैं आपको नहीं बता सकती ना आप सीख सकते हैं, आप रिलाय कर सकते हैं कि उन छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, बिकॉज यू हैव चोजन अ रिलायबल पार्टनर। सो क्विकली स्टार्टिंग विद द कंपोनेंट्स। सबसे पहले सोलर लेते समय आप इन 4 कंपोनेंट्स का नाम सुनेंगे। आई एम एजुकेटिंग यू ऑन दैट फर्स्ट। सोलर मॉड्यूल, दिस इज द हार्ट ऑफ द सोलर।
वो ब्लू ब्लैक प्लेट्स जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं. सो फर्स्ट इज सोलर मॉड्यूल. सेकेंड इज द ब्रेन ऑफ सोलर. सबको लगता है मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है इन्वर्टर और स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है. इन्वर्टर इज द ब्रेन ऑफ योर सोलर. सोलर पैनल बनाते हैं डायरेक्ट करंट. स्कूल में हमने पढ़ा था डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट. हमारे घर के अप्लायंसेस ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं. सोलर बनाते हैं 1000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट. इसे हम इन्वर्टर के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में अप्लायंसेस को पावर कर सकता है उसमें कन्वर्ट करते हैं. सो इन्वर्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर. सो दैट इज द बैकबोन और द स्पाइन ऑफ योर सोलर. किस आपका पूरा इन्वेस्टमेंट लाखों का इस स्ट्रक्चर के ऊपर रखा हुआ है, राइट. पैनल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ योर रूफटॉप सोलर. अगर आपने अपनी सबसे महंगी चीज को सिंहासन या थ्रोन पे रखने की जगह टूटी टाटी कुर्सी पे रखा, तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट, आपका सारा चीज कोलैप्स कर सकता है. सो द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड डिजाइन ऑफ योर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स दैट. लास्ट इज द डीसी केबल. जो सोलर है वो 1000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट बनाता है. डायरेक्ट करंट इज एक्सट्रीमली फेटल. तो सेफ्टी के लिए आपकी केबल्स की क्वालिटी, उनका रॉडेंट प्रूफ, एक्सटर्नल वेदर कंडीशन प्रूफ होना बहुत जरूरी है. और इन इन केबल्स की प्रॉपर ड्रेसिंग जरूरी है. मेरा दिल दहल जाता है जब मैं कई बार देखती हूँ, 1 साल पहले सोलर लिया था, अनाड़ी से लगवा लिया किसी, मेंटेन किया नहीं, डीसी केबल्स अंडर द पैनल्स आर हैंगिंग. अब आप नेक्स्ट टाइम कभी गाड़ी में जा रहे हो तो आसपास देखिएगा किसी हॉस्पिटल पे, घर पे सोलर के अंदर केबल्स कई बार मैंने देखा लटकी रहती है. 1000 वोल्ट की डायरेक्ट करंट केबल है, इसे आपने ड्रेस नहीं किया है, अगर इसे खींच लिया, अगर इसे हमने रॉडेंट प्रूफ नहीं लगाया, एक्सटर्नल वेदर करोजन रेजिस्टेंट केबल्स अगर हमने नहीं लगाई, 1000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट, आपका परिवार छत पे जाएगा, आपका डोमेस्टिक स्टाफ, वॉचमैन छत पे जा सकता है. इमेजिन द काइंड ऑफ रिस्क यू आर पुटिंग पीपल एट. सो केबल्स का क्वालिटी, एक्सटर्नल वेदर रेजिस्टेंट होना, एज वेल एज उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग होना, ये दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ वेर योर इंस्टॉलेशन पार्टनर्स एक्सपर्टीज कम्स इन, राइट. तो अडानी का पैनल लिया पर उल्टी पुल्टी नीचे केबल लटका दी और सेफ्टी रिस्क अपने परिवार के लिए पैदा करी, तो नो इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इट इफ इट इज अनसेफ. सो सेफ्टी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. पैनल लेते समय आप पैनल की ब्रांड, टेक्नोलॉजी, वारंटी देख सकते हैं. ज्यादातर पैनल 10 से 12 साल की वारंटी के लिए आते हैं. आजकल सबसे ज्यादा जो मार्केट में कंज्यूमर्स ले रहे हैं वो है बाईफेशियल पैनल्स. बाईफेशियल पैनल्स में ऊपर भी ग्लास होता है, नीचे भी ग्लास होता है. जो सनलाइट जमीन पे गिरती है उसका रिफ्लेक्शन नीचे से भी सोलर पैनल के अंदर बिजली प्रोड्यूस करता है. तो सिर्फ जो ऊपर से बिजली बनाने वाले पैनल है उसकी जगह अगर आप बाईफेशियल पैनल लेंगे तो आप दोनों तरफ से बिजली बनाएंगे. प्लीज डोंट अज्यूम कि बिजली डबल हो जाती है, बट थोड़ा सा ऐसे बाईफेशियल गेन कहा जाता है. लगभग 2 से 5 7% के आसपास बिजली इससे ज्यादा बनती है. सो बाईफेशियल पैनल्स आर द ट्रेंड. ऑल्सो ये पैनल्स में सेल के अराउंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये तो देखने में अच्छा लगता है. सोलर के शेड के नीचे आप खड़े रहेंगे तो सनलाइट भी नीचे आती है. इट ऑल्सो लुक्स एस्थेटिकली वेरी ब्यूटीफुल. सेकेंड इज द इन्वर्टर. अगेन ब्रांड, टेक्नोलॉजी और वारंटी आप देख सकते हैं. इन्वर्टर में मैंने ज्यादातर देखा है काफी पुअर क्वालिटी इन्वर्टर्स जो जो छोटे छोटे ओईएम्स इंडिया में बनाते हैं, जिनका फील्ड फेलियर बहुत हाई है. इन्वर्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसमें 12 से 15% तक फील्ड फेलियर पाया गया है. फिर आप आपके इंस्टॉलर को कॉल करेंगे, भैया मेरा इन्वर्टर रिप्लेस कर दो, बंद पड़ गया. इफ योर इन्वर्टर शट्स डाउन, योर सोलर शट्स डाउन. सो इन्वर्टर में अच्छी ब्रांड का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. वी सजेस्ट गो फॉर द टॉप 3 to 5 ब्रांड्स ऑफ पैनल एंड इन्वर्टर्स इन इंडिया. पैनल आपको सब्सिडी के लिए मेड इन इंडिया पैनल ही लेना होता है, तो मेड इन इंडिया के टॉप 5 6 कंपनीज के पैनल्स आप चूज कर सकते हैं. इन्वर्टर में मेड इन इंडिया का होना जरूरी नहीं है, आप इंपोर्टेड इन्वर्टर्स भी ले सकते हैं. We work with the number one manufacturer of panels in India, number one and two, and for inverters we work with the world's largest inverter manufacturer. So ये सारी चीजें अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है. कई बार कस्टमर्स पैनल देखते हैं और फिर इन्वर्टर, मैं नाम नहीं लूंगी, बट गलत सलत ब्रांड्स के लगवा लेते हैं. सो इम्पॉर्टेंट है कि आप इनकी रैंकिंग्स देखें. मूविंग टू द मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, इसे हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि पैनल और इन्वर्टर ब्रांड का आता है. कंज्यूमर ज्यादातर उसे सही ब्रांड का सिलेक्शन ले लेते हैं. ठीक है, मैंने इस ब्रांड का नाम सुना है, मुझे इसका इन्वर्टर, इसका पैनल दे दो. जहां गलती होती है वो है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर. ये किसी ब्रांड का नहीं आता. आपकी घर की छत पे इस सिविल वर्क को, इस मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर को खड़ा आपकी सोलर कंपनी करेगी. यहाँ पे जब कंज्यूमर मांगता है सस्ता तो उसे मिलता है सस्ता. वेंडर बोलता है ठीक है मैं पैनल और इन्वर्टर तो आपको अच्छा दूंगा, अब आपको सस्ता चाहिए, तो स्ट्रक्चर में आप मुझे बोल नहीं पाओगे मैंने क्या किया नहीं किया. मैं कुछ
सारे कॉर्नर्स कट करके थोड़ा स्टील कम, थोड़ा मटेरियल सस्ता, वर्जिन की जगह रिसाइकल्ड स्टील लगा दूंगा, गैल्वेनाइजेशन की जगह जिंक का पेंट मार दूंगा, रस्ट आपको लगेगी उस पे। मेंबर जो लेने चाहिए थे एक्स सेंटीमीटर के, वो मैं एक्स 40% कम के ले लूंगा। तो यहाँ पे काफी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, यहाँ पे काफी कस्टमर्स ठगे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में 20 to 25% सोलर शेडो में लगा हुआ है, वैसे ही दूसरी स्टेटिस्टिक है, इंडिया में 25% घरों पे लगा हुआ सोलर का मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर इज अंडर डिजाइंड, जो कि प्री मॉनसून विंड, जो आंधी तूफान आती है हर साल बारिश के पहले, उसमें कोलैप्स हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, आपका जो सोलर पैनल है वो अगर मुकुट है तो उसे सिंहासन पे रखें, उसे टूटी कुर्सी पे ना रखें, वरना आपका सारा इन्वेस्टमेंट गिर के बारिश आंधी में कोलैप्स हो सकता है। वन इज लूजिंग द इन्वेस्टमेंट, टू विद द मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर कोलैप्सिंग, इट इज अ बिग सेफ्टी रिस्क एज वेल। तो हम आज कुछ इमेजेस को यहाँ पे देखेंगे। मेरा पर्पस यहाँ पे डराना नहीं है, बट ये काफी कॉमन रियलिटी हो चुकी है। स्टॉर्म डैमेज टू रूफटॉप सोलर इज ऑन द राइज। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत वरी कर रहा है, बिकॉज कई क्रेजी एपिसोड्स हो चुके हैं। जयपुर में 2023 में, आई थिंक मई के महीने में 130 किलोमीटर पर आवर की आंधी आई थी। वेरी कॉमन, हर साल आती है बारिश के पहले। उस दिन की आंधी में एक ही दिन में 1,000 घरों से सोलर पैनल्स कोलैप्स करके गिर गए थे। नाउ यू मे थिंक कि ये कॉमन नहीं है, बट दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपकी अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, सो बी अवेयर ऑफ वॉट यू आस्क फॉर। सस्ता पूछने से पहले क्वालिटी एंड स्टॉर्म सेफ्टी को जरूर समझें। एक एक पैनल 27 किलो का कांच का बना होता है। यू डू नॉट वॉन्ट इट फॉलिंग ऑन योर कार, गॉड फॉरबिड ऑन समबडी इन योर फैमिली। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस स्टॉर्म सेफ्टी। अगर हम ये देखें, ज्यादातर घर ये परगोला बनाना चाहते हैं। लाइक आई सेड, 25% जो सोलर इंडिया में लगा हुआ है, ये हमारा एस्टिमेट है, ये पुअरली इंजीनियर्ड है, ये गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स का भी यही एस्टिमेट है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आप अनाड़ी सोलर किसी कंपनी से सोलर लगवा लेते हैं कि ठीक है, मतलब मेरे हार्डवेयर की दुकान है, ये भी सोलर लगा देगा। आप किसी से भी सोलर लें, मैं ये नहीं कह रही आप सोलर स्क्वायर से लें, आप किसी से भी लें, आप इंजीनियर्ड सोलर लें, हर शहर का सिविल कोड विंड स्पीड डिजाइन डिटरमाइन करता है। आपका शहर अगर लखनऊ है तो वहां 175 किलोमीटर पर आवर की आंधी भी आ सकती है। अगर आप बैंगलोर के रहने वाले हैं तो वहां 140-150 किलोमीटर पर आवर से ऊपर आंधी नहीं आती है। एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी आपके शहर के विंड स्पीड जोन के हिसाब से आपके माउंटिंग स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को डिजाइन करेगी। ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नॉन इंजीनियर्ड अनाड़ी इंस्टॉलर्स आए, डेली वेजर लेबर आई। बहुत रिस्पेक्ट है मुझे लेबर की मेहनत के लिए, लेकिन जो डेली वेजर मेसनरी और इलेक्ट्रिकल का काम करता है, उससे आप इंजीनियरिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके घर के लिए साइंटिफिकली सोलर को डिजाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, मोस्टली इंडिया में सोलर वेल्ड किया जाता है। इंडिया में वेल्ड एक्सपीरियंस वेल्डर्स की कमी है, पूरे दुनिया में एक्सपीरियंस वेल्डर्स की कमी है। जब जब आप अपने घर पे वेल्डेड सोलर लेंगे, उसमें मैनुअल एरर्स आने ही हैं। आपने तगड़े मेंबर्स ले लिया आपके स्ट्रक्चर के, लेकिन उसे जोड़ते समय वो जॉइंट्स वीक रह गए, तो भी आपका सोलर कोलैप्स होना है। वेल्डिंग में रस्ट का पकड़ना कॉमन है, और वेल्डिंग जॉइंट्स में यूनिफॉर्मिटी हो ही नहीं सकती। आप अगर अपने घर पे अगर 4 किलोवाट का सोलर लेते हैं, तो उसमें लगभग 40 से 50 जगहों पर वेल्ड किया जाएगा। आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये वेल्डिंग में गलती नहीं होगी? एक्सपीरियंस वेल्डर जरूर है इंडिया में, उनको वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो जो लोकल कंपनीज हैं वो एक्सपीरियंस वेल्डर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करती हैं। तो ये वेल्डेड सोलर काफी बड़ा एक रिस्क है। आप 20 साल की बिजली बनाने का सोच रहे हैं, 20 साल तक एक्सटर्नल वेदर कंडीशन जिसे बेयर करना है आपके सोलर को, आंधी तूफान, ठंड, गर्मी, डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, सब कुछ। तो वो आप काफी साइंटिफिकली और ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइन होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने पुअर क्वालिटी सोलर लिया जो कि कोलैप्स कर गया, जैसे राजस्थान में 1,000 घरों से कोलैप्स कर गया, देर इज नो इंश्योरेंस दैट कवर्स यू फॉर इट। 1.5 साल से ये केस इंडिया में चल रहा था कि 1,000 घरों को कुछ भुगतान दिया जाए, इनके घर से सोलर कोलैप्स हो गया। कोर्ट ने ये बोला है, बायर बीवेयर। आप अपनी क्वालिटी खुद डिसाइड कर रहे हैं, सेफ क्वालिटी, सेफ प्रोडक्ट खरीदें। इसमें आपको कोई कॉम्पनसेशन
डिस्कॉम नहीं, सोलर इंस्टॉलर नहीं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, कोई नहीं दे सकती. सो बायर बी वेयर, प्लीज गो फॉर गुड क्वालिटी, एंड रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज तो है, राइट. सो सबसे बड़ा कॉमन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेल्डेड स्ट्रक्चर्स. प्लीज डोंट फॉल फॉर इट. लाइक आई सेड, यू गेट व्हाट यू वांट. इफ यू आस्क फॉर क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग सेफ्टी, यू गेट इट. अगर आप सस्ता पूछेंगे बिना समझे कि स्ट्रॉन्ग सेफ्टी की क्या रिस्क है, तो ये सबसे कॉमन जगह है जहां पे कस्टमर्स को ठगा जाता है. सबसे आसान है कि आपकी छत पे कुछ तिकड़मबाजी करके, वेल्ड वेल्ड करके पतले पतले लोहे के स्ट्रक्चर्स लगा दिए जाएं. हाउ डज सोलर स्क्वायर इंश्योर सेफ्टी? हम काम करते हैं इंडिया की 8 स्टेट्स में. वी आर द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल सोलर कंपनी ऑफ इंडिया. आज की डेट में, लाइक आई सेड, हर 40 मिनट में एक घर सोलर स्क्वायर के साथ सोलर जाता है. ये घर लखनऊ में भी है, हैदराबाद में भी हो सकता है, अहमदाबाद में भी हो सकता है, पुणे में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, बैंगलोर में भी हो सकता है. हम कैसे इंश्योर करते हैं कि नॉर्थ से लेके साउथ तक हर घर में हम ये सेफ सोलर पहुंचा पाए, सेफ इंस्टॉलेशन पहुंचा पाए? इसके लिए वी हैव बेसिकली बिल्ट द सेफेस्ट प्री फैब्रिकेटेड सोलर स्ट्रक्चर्स फॉर इंडियन रूफ्स. ये हमारी ट्रेडमार्क डिजाइन है, इसका नाम है सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट. विंड प्रो माउंट है साइक्लोन प्रूफ. ना कि सिर्फ सालाना की आंधी तूफान के लिए इसे डिजाइन किया है. अनफॉर्चुनेटली विद क्लाइमेट चेंज, इंडिया में साल के 2 साइक्लोन्स आ रहे हैं. पिछले साल कच्छ रीजन में बिपरजॉय आया था, उसके पहले बॉम्बे पुणे रीजन में अम्फान साइक्लोन आया था. तो साइक्लोन्स विल, विद एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना, हीट वेव्स एंड साइक्लोन्स, बोथ आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉमन. इसलिए हमने आपकी साधारण आंधी तूफान के लिए नहीं, साइक्लोन प्रूफ सोलर बनाए हैं जो 180 किलोमीटर पर आवर तक की विंड स्पीड को हैंडल कर सकता है. और आपको आंधी तूफान में कभी ये टेंशन नहीं होगी, छत पे जाके देख लूं सोलर उड़ तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू आई एंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन फ्रॉम लखनऊ टू बैंगलोर टू हैदराबाद? दिस इज मॉड्यूलर एंड रेडी टू इंस्टॉल. यानी कि यहाँ पे कोई लेबर डिपेंडेंस नहीं है, ये प्री फैब्रिकेटेड है. ये स्ट्रक्चर्स फैक्ट्री में बनेंगे आपके घर के लिए, आपके घर में ये मेंबर्स डिलीवर होंगे. ये मॉड्यूलर एंड रेडी टू इंस्टॉल है. इन्हें सिर्फ हम पावर टूल से नट बोल्ट करते हैं. क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑन साइट कटिंग, वेल्डिंग, कंस्ट्रक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज प्री फैब्रिकेटेड. देयर इज नो चांस ऑफ एनी मैनुअल एरर विद सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट. विंड प्रो माउंट का सेफ्टी स्टैंडर्ड स्पीक्स फॉर इट सेल्फ. 10,000 प्लस इंस्टॉलेशंस अक्रॉस इंडिया थे हमारे लास्ट 2 सालों में. 99.91% sites have reported zero storm damage. So we are able to deliver very, very high quality and standardized safety across India. We like to say one thing in Solar Square, that safety is our biggest obsession, right? So हम हर दिन अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इवेल्युएट करते हैं, ऑडिट करते हैं. वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन डेवलपिंग सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट, एंड विद दैट यू गेट अ वेरी वेरी safe solution for your home. Please note, WindPro mount is also approved by IIT Bombay to be cyclone proof. IIT Bombay Civil Engineering Department ने इस पूरी डिजाइन को, इस स्ट्रक्चर को, इसे टेस्ट किया है और इसे सर्टिफाई किया है टू बी साइक्लोन प्रूफ. So you are not believing me, you are believing the experts when I say that WindPro mount is the safest solar for your home, and that is how we deliver standard quality and safety across India. So that is that. Now moving to design and engineering. Like I said, सब कुछ अच्छा लिया, but अनाड़ी से बनवा लिया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है. So quickly, जो आपका सोलर है वो सेफ्टी और परफॉर्मेंस, दो चीजों के लिए डिजाइन होता है. परफॉर्मेंस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात तब आती है जब कोई चीज सेफ हो. So firstly, this is the safest solar for your home. Secondly, we design it extremely carefully for your roof to make sure performance भी आपको highest मिले. When you book a free solar consultation with Solar Square, हमारे एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स आपके घर आएंगे, आपके रूफ का सर्वे करेंगे. आर डिजाइनर्स विल डू अ सॉफ्टवेयर सिमुलेशन फॉर 365 डे शैडो. उसके बाद ड्यूरिंग योर सोलर कंसल्टेशन इटसेल्फ हम आपको दिखाएंगे आपकी 3D डिजाइन. तो 3D डिजाइन आप आपकी फैमिली मिलके देख सकते हैं. सोलर कहाँ लगेगा, हमारा विंड प्रो माउंट कैसा दिखाई देगा, क्या लेआउट आपके घर के लिए फिट होता है. देर आर अबाउट 15 डिफरेंट लेआउट्स ऑफ विंड प्रो माउंट दैट वी हैव. तो उन 15 में से कैसा लेआउट आपके घर की छत के लिए सूटेबल है, कहाँ लगेगा, 3D, वो सब आप देख सकते हैं. उसके बाद वी सेंड यू रेडी टू इंस्टॉल मॉड्यूलर डिजाइन. तो शैडो में नहीं लगेगी, वर्कमैनशिप का कोई रिस्क नहीं है, रेडी टू इंस्टॉल है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, सोलर को आपकी छत से एंकर कैसे किया जाए. कई लोगों को मैंने देखा है, डर होता है, सोलर वोलर तो ठीक है यार, छत पे छेद करेंगे, एंकर करेंगे, सोलर लगाएंगे, मेरे घर पे वाटर लीकेज ना हो जाए. वाटर लीकेज इज अ बिग फियर मेनी पीपल हैव.
यहाँ नीचे आप देख सकते हैं सारे सर्टिफिकेशन ऑन सोलर स्क्वायर डिजाइन, कौन से स्टैंडर्ड्स हम यूज करते हैं, एंटी साइक्लोन है, आईआईटी बॉम्बे अप्रूव्ड है। इसके अलावा हम आपको सोलर इंस्टॉलेशन के साथ 1 लाख तक का वाटर लीकेज कवर भी देंगे। हमारा इंस्टॉलेशन से आपकी घर की छत पे लीकेज नहीं होगा। वी आर सो गुड एट आवर इंजीनियरिंग दैट वी एक्चुअली गिव यू अ गारंटी। अगर लीकेज हुआ, यू आर एलिजिबल टू क्लेम अप टू 1 लाख रुपीज फॉर वाटर लीकेज रिपेयर ऑफ योर रूफ। हाउ डू वी इंश्योर नो वाटर लीकेज? मोस्टली जो इंडिया में सोलर लगाया जाता है वो आपकी छत पे इन इन कॉलम्स को, इस परगोला को आपकी छत पे ग्राउट करना पड़ता है। मोस्टली जो इंस्टॉलर्स हैं वो मैकेनिकल एंकरिंग का यूज करते हैं। मैकेनिकल एंकरिंग में आपके घर की छत में होल ड्रिल किया जाएगा, उसके अंदर ये फास्टनर डाला जाएगा। ये फास्टनर आपकी छत के आरसीसी के अंदर जाके स्प्लिट करता है, और स्प्लिट करके वो आपकी आरसीसी को जकड़ लेता है। तो इसे स्ट्रेंथ तो मिलती है, लेकिन ये फास्टनर आपके आरसीसी में जो लाल लाल आप क्रैक्स देख रहे हैं, इट क्रिएट्स माइक्रो क्रैक्स ऑन योर रूफ। थ्रू दीज माइक्रो क्रैक्स नेक्स्ट मॉनसून में धीरे धीरे वाटर स्टार्ट्स लीकिंग इनटू योर होम। How do we avoid it? Solar Spray uses chemical anchoring. When we put the fastener inside your roof, we pour a chemical called Hilti. This is the world's leading water leakage chemical. Hilti is actually used to waterproof dams. यानी जहां पानी का प्रेशर इंसेन होता है, वहां पे वाटरप्रूफिंग के लिए हिल्टी को यूज किया जाता है। वी हैव ब्रॉट द सेम लेवल ऑफ वाटरप्रूफिंग टू योर small tiny residential solar installation. So this is called chemical anchoring. Chemical anchoring से आपके घर की छत पे लीकेज का रिस्क नहीं होगा। Like I said, we also give a 1 lakh rupee cover. So that is that on design and engineering. Like I said, हम PhD नहीं कर सकते। ऐसी 100 और चीजें हैं, मैंने आपको टॉप 4-5 चीजें बताई हैं जिससे कि आप अवेयर हो सकते हैं। एंड इंडिया में थोड़ा उल्लू बनाइंग का कल्चर है। द मोर अवेयर यू आर, द मोर अवेयर द बायर इज, लेस उल्लू बनाइंग। सो आई हैव टोल्ड यू द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। नाउ मूविंग टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। अब हम आ जाते हैं कि सब कुछ देख लिया, सोलर कंपनी की एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज को कैसे गेज किया जाए, राइट? सो हाउ शुड यू चूज द राइट सोलर कंपनी? Unfortunately, the risk of choosing your wrong installation partner is very, very high. As per a research conducted by think tank CEEW, 1 in 2 solar on homes in India is underperforming. यानी कि हर 2 में से 1 घर पे लगा हुआ सोलर से कम बिजली बन रही है। कम बिजली यानी कम बचत, कम बचत यानी कि आपकी आरओआई, पे बैक कैलकुलेशंस, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। मेरा ये वेबिनार से सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप उन 50% लोगों में से ना बने जो गलत सोलर ले जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट एंड बाय गुड सोलर। ये जो अंडर परफॉर्मेंस है, ये कोई 5-10% नहीं है कि 1400 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर बननी थी, 10%, 5% कम बनी। ये अंडर परफॉर्मेंस छोटा मोटा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। ईयर 2 तक 30% से ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है। यानी कि जो आपका सोलर सालाना आपको देना चाहिए था 1400 यूनिट, वो शायद आपको सिर्फ 1000 ही यूनिट देगा। और इससे आपकी मंथली जो बचत होनी थी शायद 4000 रुपए, उसकी जगह अब आपकी बचत होगी सिर्फ 3000 रुपए, राइट? तो आपका सारा ब्रेक इवन और सारी सेविंग्स इस पे रिस्क पे जाती है। यहाँ पे हमने मेजर रीजंस बताए हैं। 80% घरों में पाई गई थी शैडो लॉस, सॉरी सॉइलिंग रिलेटेड लॉस, यानी कि पैनल्स के ऊपर धूल, मिट्टी, बर्ड ड्रॉपिंग्स जम जाती है, ये हार्ड डस्ट होती है। मोस्ट इंस्टॉलर्स इन इंडिया आर इन द बिजनेस ऑफ इंस्टॉल एंड फॉरगेट। मैंने लगा दिया सर, आप देख लेना। ऐसा नहीं है जैसे आपकी गाड़ी को सर्विसिंग लगती है। सोलर नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस। इफ एनीबडी टेल्स यू कि सर सोलर में तो मिनिमम मेंटेनेंस है, नो मेंटेनेंस है, ये बिल्कुल गलत है। हम कमर्शियल, रिलायंस, पैनासोनिक, जिंदाल, इन सभी कंपनीज ने हमसे सोलर लिया है, वो सब हमसे मेंटेनेंस खरीदते हैं। अगर जीरो मेंटेनेंस होता तो जब पैनासोनिक, रिलायंस, जॉनसन एंड जॉनसन ने सोलर स्क्वायर से सोलर लिया था, वो भी जीरो मेंटेनेंस लेते। वो क्यों मेंटेनेंस खरीदते हैं, राइट? द बिगेस्ट ऑफ सोलर बायर्स नेवर बाय सोलर विदाउट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे काफी कंस्ट्रक्शन है, हम ग्रोइंग देश है। सॉइलिंग एंड डस्ट इन इंडिया इज अ लॉट हायर, राइट? सो प्लीज डू नॉट लेट एनीबडी फूल यू कि आप सोलर को बिना मेंटेनेंस के खरीद सकते हैं। हम अपने सोशल मीडिया पर और हमारे यूट्यूब पर हमने एक वीडियो भी डाला है। कई सोलर कंपनी स्प्रिंकलर लगा के सोलर बेच रही हैं। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो कि क्यों स्प्रिंकलर वाला सोलर अगर आप लगाते हैं, आपको लग सकता है कि यार बिना मेंटेनेंस के स्प्रिंकलर लगा है, पानी फेंक देता है पैनल पे स्प्रिंकलर, मेरा पैनल तो साफ हो जाता है। Sprinklers are extremely discouraged by all module manufacturers. Sprinklers on your solar panel are like cancer for your solar panel.
सोलर पैनल का उससे डेथ होनी ही होनी है। प्लीज डू वॉच द वीडियो। मेंटेनेंस प्रोफेशनल टेक्नीशियन द्वारा करी जानी पड़ती है, इससे मैनुअली ही करना पड़ता है। जैसे आपके एसी पे हर 6 महीने में मेंटेनेंस होती है, फिल्टर क्लीन होता है, गैस कंप्रेसर चेक होता है, वैसे ही सोलर का भी 360 डिग्री मेंटेनेंस विच इंक्लूड्स पैनल डीप क्लीनिंग करना जरूरी है। मोस्ट इंस्टॉलर्स मेंटेनेंस करते नहीं है, कुछ लोग स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं। कुछ इंस्टॉलर्स हैं इंडिया में, मैं बोलूंगी अगर 5,000 इंस्टॉलर्स हैं इंडिया में करेंटली, तो उसमें से शायद 300 से 500 ही इंस्टॉलर्स हैं जो रेगुलर मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। प्लीज डू चूज देम, हमसे लें किसी और से लें, सही मेंटेनेंस के साथ सोलर लें। सेकेंड, 50% घरों में पुअरली इंजीनियर्ड सोलर पाया गया, जिसमें शैडोज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। कई घरों में और दूसरे इश्यूज थे, मॉड्यूल्स में बेंड आ गए थे, बल्ज आ गए थे, सैगिंग आ गई थी, ऐसे कई गलत इंक्लिनेशन पे सोलर लगा दिया गया था। तो आपके घर का एजिमिथ, शैडो एनालिसिस, स्ट्रेंथ वगैरह सब डिजाइन करने के बाद सोलर लगना चाहिए। 50% घरों में पुअरली इंजीनियर्ड सोलर है। 30% घरों का सोलर में मॉड्यूल डिफेक्ट्स हैं। ये मॉड्यूल डिफेक्ट फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर ये हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में ही होते हैं। ये भी एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। दीज डिफेक्ट्स आर लाइक सोल्डरिंग डिफेक्ट्स जो फैक्ट्री में होते हैं, या माइक्रो क्रैक्स। माइक्रो क्रैक्स आपके पैनल के अंदर इनविजिबल क्रैक्स होते हैं, जिससे कि आपके पैनल का परफॉर्मेंस तो डाउन जाता ही जाता है, माइक्रो क्रैक वाले पैनल पे वारंटी भी नहीं मिलती। ये माइक्रो क्रैक्स आर एक्सट्रीमली कॉमन। मैंने देखा है खुली ट्रक्स में बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड के पैनल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंडिया की रोड पे गड्ढे हैं, धक्के लगते हैं, कांच का बना हुआ पैनल है, जो उसका सेल है वो हेयर थिन होता है, उसे सेफली ट्रांसपोर्ट हैंडल इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। मेरा पर्पस डराना नहीं है। लाखों घरों में सोलर लगा हुआ है, लेकिन सही सोलर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टुडे। ये जो आप थर्मल इमेजेस देख रहे हैं, जो ऑरेंज पिंक इमेजेस जो आप देख रहे हैं, ये थर्मल कैमरा के अंदर पैनल की इमेज को देखा जा रहा है। एवरी पार्ट दैट हैज लिट अप इन ब्राइट येलो इज अ सेल इन योर पैनल दैट इज क्रैक्ड। तो जब आप इंडिया में लगे हुए सोलर सेल्स को, थर्मल सोलर पैनल जो घरों पे लगे हैं, जो पुअरली ट्रांसपोर्टेड हैं, जिसे मेंटेन नहीं किया गया है, जिसके ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, या जिसे हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, उनमें ज्यादातर पाया गया है कि ऑलमोस्ट घर में 10 पैनल लगे हैं, 10 के 10 में माइक्रो क्रैक्स निकले। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, वर्कमैनशिप एज वेल एज आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स के दौरान भी अगर अनाड़ी आप सोचे कि मैं अपने डोमेस्टिक स्टाफ को छत पे भेज के पैनल को घिसवा दूंगा और साफ करवा दूंगा, तो प्लीज ये हार्ड डस्ट है, ये आपके पैनल पे माइक्रो क्रैक पैदा करेगी। इफ यू इनकरेक्टली ट्राई टू क्लीन इट, प्लीज लीव द मेंटेनेंस टू एक्सपर्ट्स। ये थर्मल कैमरा इस बात का प्रूफ है कि इनकरेक्ट मेंटेनेंस से भी आपका पैनल डैमेज हो सकता है। सो वी हैव, व्हेन यू बाय फ्रॉम सोलर स्क्वायर, हम आपको इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट कैमरा से ली गई इमेज, हर पैनल की, आपकी फैक्ट्री की इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट इमेज ली जाती है, और आपको वो इमेज एज अ प्रूफ आफ्टर योर सोलर इंस्टॉलेशन दी जाती है कि आपके घर पे जो जो सीरियल नंबर पैनल लगा है, उसको हमने सिर्फ नेकेड आई से नहीं, सिर्फ इस बात पे नहीं भरोसा किया है कि हाँ बड़ी ब्रांड का पैनल है। हर एक पैनल को हम क्वालिटी चेक करते हैं। उसके बाद हमारी बनाई गई डिलीवरी वैन्स हैं, आप में से कुछ लोगों ने शायद हमारे सोशल मीडिया पे देखी हो। दीज वैन्स आर कस्टमाइज्ड फ्रॉम इनसाइड, दे हैव स्लॉट्स टू कैरी पैनल्स सेफली। वी टेक अटमोस्ट केयर कि फैक्ट्री की क्वालिटी से लेके आपके घर के ट्रांसपोर्ट तक, उसके बाद की मेंटेनेंस तक, हम आपके पैनल की हेल्थ मेंटेन रखें, और कभी आपके ऊपर ये नौबत ना आए कि आपकी वारंटी रिजेक्ट हो जाए। सो वी ऑल्सो गारंटी अ डोर टू डोर वारंटी, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर ने आपके पैनल की वारंटी रिजेक्ट करी, वो चाहे अडानी हो, चाहे पैनासोनिक हो, चाहे प्रीमियर हो, चाहे रेजॉन हो, चाहे नाविटास हो, अगर उन्होंने वारंटी रिजेक्ट करी, तो सोलर स्क्वायर विल एक्चुअली कवर यू फॉर इट। सो वी आर द ओनली कंपनी दैट ऑल्सो गिव्स अ डोर टू डोर वारंटी। लाइक आई सेड, बिना प्रोफेशनल मेंटेनेंस के पैनल्स की ये हालत हो जाती है। 30% परफॉर्मेंस डाउन इन जस्ट 6 मंथ्स, ये हमने खुद रिसर्च करी है। हमने 2 टेस्ट बेंचेस बनाई थी, 2 घरों में, नेबर्स के घर में हमने सोलर लगाया था। एक को मंथली मेंटेन किया, एक को 6 महीने मेंटेन नहीं किया। एक घर बना रहा था रफली दिन की 4 यूनिट आफ्टर वी आफ्टर 6 मंथ्स, और दूसरा घर दिन की बना रहा था सिर्फ 3 यूनिट। सो 30% से परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। ये डेली का जो ड्रॉप है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यही जो 30% जो परफॉर्मेंस कम हुआ है 6 महीने में, ये 3 साल में 60% तक कम हो जाएगा। सो योर ब्रेक इवन कैन रियली गो फॉर अ टॉस। सो या, इनएक्सपीरियंस कंपनी से सोलर लेने के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पुअर परफॉर्मेंस, आपको रिपेयर रिप्लेसमेंट का खर्चा आ सकता है, आपकी फैमिली के ऊपर स्टॉर्म स्टॉर्म की सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का फैमिली रिस्क आ सकता है,
वारंटीज वॉइड होना बहुत कॉमन है इंडिया में, कि आपका इंस्टॉलर बोलेगा सर आपका पैनल में बिजली नहीं बन रहा था, वारंटी क्लेम किया, पर जिससे लिया था पैनल उसने मना कर दिया। दीज आर बैक टू बैक वारंटीज, राइट? सो यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी वारंटीज वॉइड ना हो। एक भी पैनल पे अगर वारंटी वॉइड हुई तो आपको 12 से 15 हजार रुपए तक का खर्चा आ सकता है। सो जो भी आप अपफ्रंट सोलर कम प्राइस का लेने में जो भी आप से बचत करेंगे, वो आपको पुअर परफॉर्मेंस, वारंटी रिजेक्शन, इस सब में काफी आपका नुकसान वापस कर सकती है। सो हाउ कैन यू गेज एक्सपर्टीज? अगर आप किसी सोलर कंपनी की एक्सपर्टीज गेज करना चाहते हैं, प्लीज डू विजिट देयर ओल्ड इंस्टॉलेशन। आप उनसे कहें कि हमें आप अपने 1.5 से 2 से 3 साल पुराने इंस्टॉलेशन दिखाइए। सबसे पहले ऐसे ही इंस्टॉलर से ले जो कम से कम 3-4 साल से रूफटॉप सोलर का एक्सपीरियंस रखता हो। आप 25 साल का एसेट ले रहे हैं, आपको 25 साल तक उसमें सर्विस, मेंटेनेंस, वारंटी क्लेम्स में सपोर्ट लगेगा। जो कंपनी 3 साल से धंधे में ही नहीं है, जिसके पास कोई 3 साल पुराना कस्टमर ही नहीं है, उसे आप कैसे ट्रस्ट करेंगे कि वो फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर पाएगी, या उसके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस है आपको एक 25 ईयर लाइफ का प्रोडक्ट बेचने का? सो 1.5 to 3 year ओल्ड साइट्स का विजिट प्लीज डिमांड करें। नई साइट सबकी ठीक ठाक दिखती हैं, पुरानी साइट में आपको रस्टिंग, सैगिंग ऑफ पैनल्स, लूज केबल्स, आपको डिस्टॉर्शन ऑफ स्ट्रक्चर की आंधी तूफान में थोड़ा हिल गया, इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज आपको काफी ट्रांसपेरेंटली दिखाई देंगे। सो विजिट 1.5 to 3 year ओल्ड साइट्स। गूगल रेटिंग जरूर चेक करें। कई कंपनीज 30-40 गूगल रिव्यूज होते हैं और 5 रेटिंग होती है। प्लीज जानिए कि 100 रिव्यूज तो कोई भी फेक ला सकता है, राइट? सो look for good Google rating and good volume of reviews, right? सोलर स्क्वायर के 4,000 से ज्यादा गूगल रिव्यूज हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक रेटिंग एंड रिव्यूज। थर्ड, गार्नर अदर डिटेल्स सच एज कितने घर, कितनी हाउसिंग सोसाइटीज उन्होंने इन द पास सोलराइज करे हुए हैं। आप इंडिया के नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल पे भी जा सकते हैं, और वहां से ही आप आपके इंस्टॉलर को बोलिए कि मुझे दिखाओ तुमने कितने घरों पे सोलर इंस्टॉल किया है। नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल की लिंक है pmsuryaghar.gov.in। तो आप किसी फेक क्लेम में नहीं फंसेंगे। नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल की ही रैंकिंग जरूर देखें। सोलर स्क्वायर इज नंबर 1 ऑन इंडियाज नेशनल सोलर पोर्टल सिंस द नेशनल सोलर पोर्टल वाज लॉन्च्ड इन 2022। हम पिछले लगभग 2 सालों से उस पोर्टल पे इंडिया में नंबर 1 है। पर आप जिस भी इंस्टॉलर से लें, हो सकता है हम आपके शहर में हमारी सर्विसेज अभी ना हो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं या ऐसे किसी शहर के रहने वाले हैं जहां सोलर स्क्वायर की सर्विसेज नहीं है, तो प्लीज आप जिस भी इंस्टॉलर से सोलर लें, उसका नेशनल पोर्टल रैंकिंग एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन जरूर चेक करें। राइट, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, सिर्फ सोलर नहीं, अब आ गया है गारंटीड सेविंग्स वाला सोलर। सो सोलर स्क्वायर इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो कस्टमर को अंडर परफॉर्मेंस की रिस्क से कंप्लीट कवरेज दे रही है। हमने पिछले साल लॉन्च किया है गारंटीड सेविंग्स वाला सोलर, यानी कि सोलर स्क्वायर के साथ आपको 5 साल तक गारंटीड पावर परफॉर्मेंस मिलेगा। दिस पैकेज इज कॉल्ड सोलर स्क्वायर गुड जीरो। इफ यू बाय सोलर स्क्वायर गुड जीरो, आपको 5 इयर्स तक गारंटीड परफॉर्मेंस मिलेगा। ये गारंटीड परफॉर्मेंस हम मंथली एएमसी करके आपके घर पे, वो करने के बाद रिमोट रियल टाइम आपके घर के पावर प्रोडक्शन को मॉनिटर करते हैं। रेगुलरली हम आपके घर के रूफटॉप सोलर को मेंटेन करते हैं। हम आपके घर में लगे हुए पैनल के 100 से ज्यादा क्वालिटी चेक्स करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट इमेज, थर्मल इमेज एंड सेवरल मोर चेक्स करके हम वो पैनल आपके घर पहुंचाते हैं। और with Solar Square Good Zero, you have no fear of any expense coming in the future. तो जीरो रिपेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपके घर के सोलर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको 1 रुपए ऊपर से देना नहीं है। इवन इफ जिस मैन्युफैक्चरर से मैंने आपका पैनल लिया है या इन्वर्टर लिया है, अगर आपके उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकली और हमने उसकी वारंटी क्लेम करी, जैसा कि मैंने कहा बहुत वारंटी रिजेक्शन होते हैं, आपको उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। सोलर स्क्वायर कवर्स यू फॉर ऑल ऑफ दिस। The only thing we don't cover you in Solar Square Good Zero is physical damage. तो हमारी एक ही आस्क है अपने कस्टमर से, रूफटॉप सोलर को हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। उसका मेंटेनेंस, आपको उसको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी छत है, आपका सोलर है, मेरी जिम्मेदारी है। डू नॉट डू एनी फिजिकल डैमेज टू दैट पैनल, जैसे कि कोई किसी ने कुछ पत्थर मार दिया उस पर या किसी ने कुछ तोड़ दिया। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी विल नॉट कवर। उसके अलावा, लाइक आई सेड, आपकी छत, आपका सोलर, मेरी जिम्मेदारी। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग कंप्लीटली गारंटीड है।
गुड जीरो गारंटी वर्क कैसे करती है? सिंपल है, अगर बिजली बनी कम तो आपको पैसे हम देंगे, इसीलिए आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटीड है। यानी कि अगर आपके घर की छत पे हमने आपको कमिट किया था, इस साल आपने 4 किलोवाट सोलर लिया, हमने आपको कमिट किए 5,500 यूनिट बिजली, लेकिन साल के एंड पे हम आपको ऐप भी देंगे इसे ट्रैक करने के लिए, हम आपको वीकली रिपोर्ट भी देंगे आपकी कितनी बिजली बनी उसके लिए। अगर साल के एंड में हमने देखा कि 5,500 की जगह शर्मा जी को सिर्फ 5,200 ही यूनिट बनी, यानी कि 300 यूनिट कम बनी शर्मा जी की, तो हम आपको 8 रुपए पर यूनिट के रेट पे उस डेफिसिट के लिए कॉम्पनसेट भी करेंगे। तो यानी कि एक बार आपने सोलर ले लिया, आपको पीक परफॉर्मेंस भी गारंटीड है, वी गिव यू पीक परफॉर्मेंस गारंटी एंड वी विल कॉम्पनसेट यू फॉर एनी शॉर्टफॉल इन योर परफॉर्मेंस। सोलर स्क्वायर गुड जीरो, करंटली हमारे 87% कस्टमर्स जो हमसे सोलर लेते हैं वो हमसे सोलर के साथ एक गुड जीरो का पैकेज लेते हैं। हाउ डू आई डिलीवर दिस सेविंग्स गारंटी? सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास ये टेक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम 10,000 से ज्यादा घरों का रियल टाइम पावर प्रोडक्शन ट्रैक करते हैं। शर्मा जी के घर में बिजली कम बनती है तो शर्मा जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोलर स्क्वायर की टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इसे रियल टाइम मॉनिटर करते हैं। इस सॉफ्टवेयर से हमें अलर्ट्स आते हैं और हम जाके आपके घर पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में बिजली बनेगी कम तो पैसे तो हम नहीं देने। सो दैट इज वाई वी एंश्योर पीक परफॉर्मेंस फॉर यू। ये एक तरीके से आपके सोलर इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस है। जो खर्चा किया है उस पर जो आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है उसमें आपको एक पैसे की भी कमी नहीं आएगी। आ, आप देख सकते हैं करंटली जैसे 822 होम्स हैं जिनका इस महीने का ये परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो ये 822 घरों का परफॉर्मेंस है। इन घरों में से 88% घर जो हैं वो जितना उनको कमिट किया गया था उतना उस डेट पर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो टोटल पोर्टफोलियो है, आप दूसरा स्पीडोमीटर देख सकते हैं, वो 112% का है। यानी कि जो ये 822 घर हैं इनको जो टोटल कमिटमेंट थी और जो इनकी परफॉर्मेंस है, इनकी परफॉर्मेंस 112% में, यानी जो कमिटेड था उससे 12% ज्यादा। लेकिन सिर्फ 88% ही घर हैं जो कमिटेड के ऊपर हैं, 12% ऐसे घर हैं जो कमिटेड के नीचे हैं। तो वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो हम कॉम्पनसेट करेंगे। ये अंडर परफॉर्मेंस भी इन केस ऑफ सोलर स्क्वायर सिर्फ 2% का है। यानी कि ऐसा होने नहीं वाला कि आपको 5,000 यूनिट हमने बोली थी और आपको साल के एंड में बनी सिर्फ 2,000, 3,000, 4,000। द अंडर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी लिमिटेड विद सोलर स्क्वायर। बट खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा हुआ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिजली बनी कम तो पैसे देंगे हम। सो दैट इज दैट। द अदर वे हाउ वी डिलीवर 5 ईयर सेविंग्स गारंटी, हम डिलीवर कैसे करते हैं, राइट? ये हम करते हैं थ्रू अ 360 डिग्री पावर बूस्ट सर्विस। हमारे टेक्नीशियंस ग्राउंड पर हर महीने आपके घर आएंगे। वी विल व्हाट्सएप यू और कॉल यू टू टेक एन अपॉइंटमेंट, और हम रेगुलरली आपके घर पे स्केड्यूल्ड विजिट के लिए आएंगे। 5 साल तक वी विल प्रोफेशनली मेंटेन इट। इसमें हम इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल सारा इंस्पेक्शन करते हैं। दिस इंक्लूड्स डीप क्लीनिंग ऑफ द पैनल एज वेल। हम एक स्पेसिफिक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश लेकर आते हैं। वाटर पंप भी हम लेकर आते हैं अगर आपकी छत पे पानी का प्रेशर कम हो, क्योंकि ये हार्ड डस्ट है, इसके लिए एक सर्टेन प्रेशर और पीएच का पानी लगता है। पानी का सप्लाई आपको देना है, लेकिन प्रेशर पंप भी हमारे टेक्नीशियंस लेकर आएंगे। सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश भी हमारे टेक्नीशियंस लेकर आएंगे। जो लैडर है आपके घर पे सोलर तक पहुंचने की, वो लैडर का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। अमेजोन से आप एक 5,000 रुपए, 3,000 रुपए में वो लैडर ले सकते हैं। एक्सेस टू द सोलर पैनल का टॉप इज रिक्वायर्ड। उसके लिए ज्यादातर घरों में लैडर की जरूरत होती है। लैडर इज द ओनली थिंग यू हैव टू प्रोवाइड। आवर टेक्नीशियंस कम विद ऑल अदर इक्विपमेंट टू मैकेनिकली चेक, इलेक्ट्रिकली चेक एंड डीप क्लीन द पैनल्स। इसके अलावा लाइक आई सेड, हम 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग तो करते ही हैं। हमारे सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिकली अलर्ट करते हैं कि मिश्रा जी के घर में आज कम बिजली बनी है, या मेहता जी के घर में आज सिस्टम डाउन है, तो क्या प्रॉब्लम है। एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू डिलीवर द 5 ईयर ऑफ गारंटीड सेविंग्स। We are the only company and first company in India to deliver it. So that brings me to the absolute end of the webinar. I know हम शायद थोड़ा सा टाइम में पीछे चल रहे हैं, but I'll try to cover the last section. How do I finance it? सब कुछ सही है, लेकिन सोलर में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जितने का भी आपके घर के लिए सोलर रिक्वायर्ड है, वो इन्वेस्टमेंट करने में कई बार हम कतरा सकते हैं कि यार अभी नहीं, 6 महीने बाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इजी लोन्स आर अवेलेबल। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हमारे 60% कस्टमर्स हमसे इजी लोन के साथ सोलर लेते हैं। जब हमारे सोलर कंसल्टेंट आपके घर आएंगे, उसी समय वो आपको आपके लोन के ऑफर्स ऑप्शंस के बारे में भी बता देंगे। सो यू कैन टेक अ 6 month 0% लोन फ्रॉम EMI, 0% लोन फ्रॉम सोलर स्क्वायर, यानी बिना इंटरेस्ट के आप एक 6 महीने का इजी 6 किश्तों में अपना सोलर खरीद सकते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज, आपके सोलर में आप नेट इन्वेस्टमेंट जीरो पे भी खरीद सकते हैं। जीरो नेट इन्वेस्टमेंट इस सोलर स्क्वायर स्मार्ट सेविंग स्कीम, इसके तहत आपको 5 साल या 60 मंथ का लोन आप हमसे लेंगे, और इस स्मार्ट सेविंग स्कीम में आप जीरो नेट इन्वेस्टमेंट पे सोलर जा सकते हैं। आपका जो डाउन पेमेंट है वो 78,000 की सब्सिडी के बराबर होगा। जो आपकी मंथली बिजली बिल की बचत है वो आपके मंथली EMI के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। यानी कि आपको घर से फंड्स अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है सोलर के साथ, सोलर स्क्वायर के साथ। विद द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम आप एक 5 ईयर लोन के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर की छत पे सोलर लगा सकते हैं। आपको पोस्टपोन करने की, डिले करने की कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ, जीरो इन्वेस्टमेंट, guaranteed savings, safest solar, that is our promise to our customers. So that is the last thing I wanted to, I wanted to highlight. And yeah, thank you so much for joining us in today's webinar. um, सोलर स्क्वायर में हम मानते हैं वी आर बिल्ट फॉर फैमिलीज एंड बिल्ट फॉर जनरेशंस। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपका जो सोलर इन्वेस्टमेंट है वो आपसे ज्यादा आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। उनकी बचत के लिए तो है ही, बट इट इज ऑल्सो फॉर द क्लीन एयर दैट आर फ्यूचर जनरेशन विल गेट विथ रूफटॉप सोलर। हम मानते हैं हमारा एक एक सोलर एक मॉन्यूमेंट है, जो टेस्ट ऑफ टाइम 2 डेकेड बाद भी आपके घर पे, इंडिया के लाखों घरों के ऊपर ये विंड प्रो माउंट्स, ये गारंटी वाला सोलर लगा हुआ होगा। एंड वी बिलीव दैट दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। सो आप सभी लोग जो सोलर लगाने का सोच रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। इन्वेस्टमेंट तो अच्छा है ही, बट यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री, यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू योर फ्यूचर जनरेशंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओवर टू यू, स्नेहा। Thank you so much, Rhea, for taking the time out. And this has been a great session. I can still see so many people, over 100 people, are still on the session. That really shows interest. I'll just take some questions that we have not covered. So Huzefa ji is asking that, if we have consumed less power and if there is surplus, can we sell it? राइट। सो उजैफा जी, सोलर इंडिया में आप सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशन यानी कि अपने घर के कंजम्पशन को जीरो करने के लिए ही ले सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आपका जो 12 महीने का जो कंजम्पशन है, हमारे सोलर कंसल्टेंट उसको स्टडी करेंगे, उसका जो एवरेज कंजम्पशन है उसके हिसाब से हम आपके घर का सोलर डिजाइन करेंगे, ताकि आपको एक्सेस बिजली आप बनाए ही ना, क्योंकि एक्सेस बिजली का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं तो महीने में 7 दिन ट्रैवल करती हूँ, तो मेरी 7 दिन की, तो क्या हमारी बिजली वेस्ट हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे सोलर ग्रिड कनेक्टेड होते हैं, यानी Your internet connection is unstable. तो सॉरी, कैन यू गाइस हियर मी, स्नेहा? I can hear you. ओके। सो ये जो सोलर है ये ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं, यानी ये नेट मीटरिंग फैसिलिटी का फायदा उठाते हैं। आपके घर में किसी भी दिन अगर एक्सेस बिजली बनेगी तो वो ग्रिड में चली जाएगी। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ आप जब भी वापस अपने घर में आएंगे वो बिजली आप ग्रिड से ले सकते हैं। इस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की पॉलिसी को कहा जाता है नेट मीटरिंग। ये नेट मीटरिंग आपके घर के लिए सोलर स्क्वायर ही करवा के देगी। इससे आपकी पावर कभी भी वेस्ट नहीं होगी। यानी कि किसी महीने ज्यादा कंज्यूम, किसी महीने कम कंज्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस महीने ज्यादा कंज्यूम किया आप ग्रिड से लेंगे, जिस महीने कम कंज्यूम किया आपको नेगेटिव बिल भी आएगा। बट 12 महीने के पीरियड में आपका सोलर जो बिजली बनाता है, 12 महीने बाद मान लीजिए अगर आपने बनाई 6,000 यूनिट, बट कंज्यूम आपने सिर्फ करी 5,800 यूनिट, वो 200 यूनिट 12 महीने के बाद लैप्स हो जाएंगी। यानी हर महीने आपको रोल ओवर मिलता रहेगा, हर दिन हर महीने। 12 महीने बाद वो फिजिकल ईयर एंड में लैप्स हो जाती है। इसलिए हमारे सोलर कंसल्टेंट आपकी बिल को अच्छे से स्टडी करते हैं, ताकि आप एक्सेस बिजली बना के उसे वेस्ट ना करें। जो भी बिजली बने आपके घर में कंज्यूम हो जाए, दैट गिव्स यू द मैक्सिमम रिटर्न। एक्सेस बिजली साल के एंड में जो ग्रिड में डाली जाती है, वो बिजली होती है लगभग 2 या 3 रुपए पे आपको उसका ऑफसेट मिलता है। तो उसका कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं है, क्योंकि वो 2-3 रुपए की बिजली बेच के कोई आपको बेनिफिट नहीं है। इसलिए यू कैन नॉट सेल एक्सेस एट द एंड ऑफ द ईयर, बट मंथली यू कैन रोल ओवर। Okay.
Thank you, Shreya. Kazi ji has asked that, no, sorry, Sudha ji, that if we have already built the structure, will we provide the remaining solar installation and maintenance? No. Okay, oh, you are saying you already have the structure. Okay, got it. जी, ये मैंने कई आजकल मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि घर पे स्ट्रक्चर लगा के सोलर कंपनी भाग गई। ऐसी लगभग हमें आई थिंक पिछले महीने में भी 100-150 रिक्वेस्ट आई हैं कि स्ट्रक्चर है पर इंस्टॉलर बाकी सब लगाए बिना भाग गया। सी, हमारा जो यूएसपी है वो विंड प्रो माउंट है, क्योंकि हम वो सॉर्म स्टॉर्म साइक्लोन सेफ्टी दे पाते हैं, इसलिए हम 5 साल की सेविंग्स गारंटीज भी दे पाते हैं। तो आप प्लीज हमारे साथ सोलर कंसल्टेशन रिक्वेस्ट करिए, हम आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को असेस करेंगे। अगर वो ठीक हुआ तो हम जरूर उस पर सोलर लगा देंगे। वी वांट टू हेल्प एज मेनी होम्स एज पॉसिबल। बट अगर नहीं हुआ तो वी विल एडवाइज यू कि आप उसे वन टाइम संक कॉस्ट, उसे लोहे को कबाड़ी को बेच दें और हमसे नया पूरा स्ट्रक्चर लगवा लें। बट बेशक अगर वो स्ट्रक्चर सेफ रहा तो वी विल इंस्टॉल ऑन टॉप ऑफ इट, वी विल डू द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एनालिसिस। All right. Sanjay ji is asking that, can I have partial load installation as per my requirement? पार्शियल लोड का ऐसा मतलब है आपका कि मतलब मुझे 10 किलोवाट सोलर चाहिए बट मैंने सिर्फ 5 ही किलोवाट लिया आज, तो हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। आपका कंजम्पशन जितना भी हो, आप अगर अपने कंजम्पशन का 20% सोलर लेंगे तो 20% बिजली सोलर से बनेगी, 80% आप ग्रिड से लेंगे। ज्यादातर हमने देखा है कस्टमर्स अपने 100% कंजम्पशन के लिए सोलर लेते हैं, यानी अगर महीने की 400 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 400 यूनिट बनाने वाला सोलर लेते हैं। 1000 यूनिट महीने की चाहिए तो 1000 यूनिट वाला सोलर लेते हैं। बट चॉइस आपकी है, अगर किसी कारणवश आपको कम सोलर लेना है, पार्शियल लोड का लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपका सवाल ये है कि मेरा सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है पर मुझे सोलर 5 किलोवाट लेना है, तो एब्सोल्युटली आप वो भी ले सकते हैं। सोलर आपका सैंक्शन लोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सैंक्शन लोड से कम बेशक हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. I'll just take a couple of more questions. वन आई वॉन्ट टू टेक, मृत्युंजय गर्ग जी ने पूछा है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, जब लाइट जाती है तो सोलर Hmm. बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। ज्यादातर लाखों घर जो इंडिया में सोलर ले रहे हैं, और ये जो 1 करोड़ घरों की सब्सिडी भी है, ये सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर के लिए है। ऑन ग्रिड सोलर का मेन पर्पस है कि आप कोल की बिजली की जगह अपनी घर की छत पे खुद की बिजली बना रहे हैं। ये बिजली क्योंकि सस्ती है, सोलर से आपको पावर बैकअप लेने के लिए एक बैटरी अलग से खर्च करना पड़ता है और बैटरी लगानी पड़ती है। तो जो ऑन ग्रिड सोलर है वो नेट मीटरिंग का यूज करते हैं, जिससे वो दिन में बिजली बनाते हैं, इंस्टेंट जो दिन का कंजम्पशन है वो दिन में ले लेते हैं, बचा ग्रिड में डाल देते हैं, सनसेट के बाद उसी कंजम्पशन को ग्रिड से वापस ले लेते हैं। तो अगर आप ग्रिड से कनेक्टेड हैं तो आपको बैटरी में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन ग्रिड सोलर की एक ही प्रॉब्लम है कि फायर सेफ्टी के लिए अगर ग्रिड आपकी बंद हुई, आंधी तूफान में आपके तार टूट गए आपके मोहल्ले के और बिजली बंद हो गई, तो जो सोलर है वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि बंद ग्रिड में अगर सोलर ने गलती से बिजली डाल दी तो आग लग सकती है। तो सेफ्टी रीजंस की वजह से ऑन ग्रिड सोलर तभी चलता है जब ग्रिड चालू है, ग्रिड बंद तो सोलर भी बंद। अगर आप अपने घर पे पावर बैकअप या ग्रिड जब जब बिजली जाती है उसके लिए भी अगर आप बैकअप लेना चाहें तो आपको लेना पड़ेगा हाइब्रिड सोलर। तो ऐसे 3 टाइप के सोलर होते हैं, ऑन ग्रिड जो ग्रिड से कनेक्टेड है, ये इससे आपको बैटरी में खर्चा नहीं करना पड़ता है, सब्सिडी भी ऑन ग्रिड सोलर के लिए है। ऑन ग्रिड सोलर आपको चीप भी पड़ता है और आप नेट मीटरिंग के यूज से काफी कंफर्टेबली अपने घर को पावर कर सकते हैं। सेकेंड आता है ऑफ ग्रिड सोलर। ऑफ ग्रिड सोलर कंप्लीटली ग्रिड से डिस्कनेक्टेड होता है, सारी की सारी बिजली को आप बैटरी में डालते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर गांव खेड़े में रूरल एरियाज में लिया जाता है जहां पे 8-8 घंटे बिजली जाती है। ऑफ ग्रिड सोलर किसी भी पुणे, लखनऊ, कानपुर, उदयपुर, वाराणसी, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली में कोई नहीं लेता है। ऑफ ग्रिड सोलर लिया जाएगा इंटीरियर बिहार, इंटीरियर झारखंड, जहां पे बिजली पहुंच जाती है। थर्ड टाइप का सोलर है हाइब्रिड सोलर। हाइब्रिड सोलर बेसिकली ग्रिड कनेक्टेड सोलर होता है, जिसमें आप 1-2 घंटे के पावर बैकअप के लिए बैटरी साथ में ले लेते हैं। तो हाइब्रिड सोलर इज द आंसर। अगर आपके एरिया में मानते हैं हफ्ते में 1 घंटे बिजली जाती है तो आप 1 घंटे का पावर बैकअप ऐड कर सकते हैं। हाइब्रिड सोलर सर्विसेज अभी सोलर स्क्वायर ने स्टार्ट नहीं करी है, बट हम 6 महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। रीजन उसका ये है कि जो बैटरीज हैं लिथियम आयन बैटरीज, उनकी प्राइसेस काफी तेजी से अभी भी क्रैश कर रही हैं। तो 1 साल बाद आपको बैटरी काफी अफोर्डेबल पड़ेगी। आज अगर आप ऑनग्रिड सोलर लें तो आप 1 साल बाद भी उसमें बैटरी अटैच कर सकते हैं। तो जब बैटरीज की टेक्नोलॉजी टेक्नो कमर्शियल मेच्योरिटी आ जाए, इट्स अ बेटर आइडिया टू ऐड अ बैटरी एंड गो फॉर हाइब्रिड सोलर नेक्स्ट ईयर vis-a-vis this year. But very soon Solar Square will offer hybrid solar as well. All right.
Shreya, someone is asking that it is said that it is mandatory to provide maintenance for 5 years by the agency. Then why are we charging for AMC for 5 years? राइट। सो इंडिया में जो सब्सिडी है उसके रहते गवर्नमेंट ने एक लूज क्लॉज डाला हुआ है कि आपको उसके साथ मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। उस मेंटेनेंस का मतलब किसने पूछा है सवाल, स्नेहा? कैन यू गिव मी द जेंटलमैन्स नेम प्लीज? VLD. That ओके is, I ओके think, initial thing. ओके, वीएलजीज। ओके, तो सर ये जो मेंटेनेंस है ये कहने के लिए गवर्नमेंट मैंडेट करती है, लेकिन इस पे कोई चेक बैलेंस नहीं है। इस मेंटेनेंस का मतलब लूजली मार्केट में ऐसे लिया जाता है कि फोन लगाएंगे सर आप तो हम आ जाएंगे। तो अगर आपकी गाड़ी टूट गई तो मेंटेनेंस है, लेकिन जो सर्विसिंग रिक्वायर्ड होती है गाड़ी को, जिससे आपकी गाड़ी प्राइम प्रॉपर कंडीशन में रहती है, वो मेंटेनेंस के लिए आपको अलग से उसे चूज करना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा ये मंथली मेंटेनेंस है। आप अगर अर्बन कंपनी में अपनी एसी रिपेयर के लिए एक बार बंदा बुलाएंगे तो 500 से 1000 रुपए वो ले लेता है। तो कोई भी मेंटेनेंस फ्री ऑफ चार्ज नहीं हो सकती अगर उसे मंथली दिया जा रहा है तो। लेकिन विद सोलर स्क्वायर, क्योंकि हमारे हजारों कस्टमर्स हैं एक एक शहर में, हमारी मेंटेनेंस बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में चार चार पांच पांच घरों की मेंटेनेंस रेगुलरली करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव थिंग इफ यू बाय फ्रॉम सोलर स्क्वायर। बट प्लीज डू नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कोई भी मेंटेनेंस की गारंटी दे रही है या कोई भी इंस्टॉलर आपको मेंटेनेंस की बिना कहे गारंटी दे रहा है। वन ऑफ द कॉमन फ्रॉड्स इन सोलर इंडस्ट्री इज कि हर लोकल कंपनी कोटेशन में लिख देती है मेंटेनेंस इंक्लूडेड। मेंटेनेंस इंक्लूडेड का क्या मतलब है प्लीज समझिए। क्या वो आपका पावर परफॉर्मेंस गारंटी करेंगे? क्या वो आपको रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे? क्या अगर आपके पैनल में परफॉर्मेंस कम रहा और वारंटी रिजेक्ट हुई तो क्या वो आपको वारंटी का कवर देंगे? क्या वो आपको वारंटी क्लेम में हेल्प भी करेंगे? ये भी काफी कॉमनली पाया गया है कि इंस्टॉलर्स वारंटी क्लेम में हेल्प भी नहीं करते। अगर आपके घर पे अडानी, टाटा, पैनासोनिक, प्रीमियर, रेजॉन, नेविटास किसी का भी पैनल लगा हो, आप इन कंपनी से डायरेक्टली वारंटी नहीं क्लेम कर सकते। देर इज नो पोर्टल, नो वेर यू कैन गो टू क्लेम अ वारंटी from these panel manufacturers. Only and only your installer is buying the panel from the manufacturer. Only and only your installer can help you claim the warranty. So maintenance देना बहुत ही लूज टर्म है। इसका मतलब यह है सर फोन उठाएंगे, फोन लगाएंगे आप तो हम उठा लेंगे। दैट्स व्हाट इट मीन्स। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस एज वेल। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेंटेनेंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मैंडेट दे रही है। प्लीज डोंट बी अंडर दैट रॉन्ग इंप्रेशन। Shreya, Tanveer ji is asking that so there's an estimate cost in difference from PM Surya Ghar, and so in that website it shows that for 3 kilowatt the investment is about 1.44 lakhs, but we are saying it is about 2.35 lakhs. Where is the delta? If Where you is the can sort difference? of. Absolutely. I think वो 1.45 lakhs post subsidy है, क्योंकि 78,000 रुपीज की सब्सिडी उसमें इंक्लूडेड है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज दैट। सेकेंडली सर, ऐसा कहा जाता है कि आपको 60% सब्सिडी मिलेगी, राइट? ऐसा ईवीज में भी कहा जाता है, लेकिन ओला की, एथर की, बजाज की सारी ईवीज की प्राइसिंग अलग अलग है, राइट? तो आप क्या क्वालिटी लेते हैं, आप कितना स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप आफ्टर सेल्स लेते हैं या नहीं, आप सेविंग गारंटी लेते हैं या नहीं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ योर रूफटॉप सोलर सोल्यूशन। तो हमारे जो सोलर कंसल्टेशन है उसमें आपको पूरी प्राइस की रेंज भी मिलेगी कि कितना सस्ता से सस्ता, सही क्वालिटी। अगर आप माइक्रो इन्वर्टर वाला सोलर लेना चाहें तो वो 50,000 रुपये और महंगा होता है। यू नो द फुल रेंज। तो सोलर जो है वो 3 किलोवाट का सोलर पर किलोवाट 50,000 रुपये से लेके आप 1 लाख रुपए तक का भी सोलर ले सकते हैं। वेरी मच लाइक गाड़ी, आप टाटा नैनो लेंगे तो 1-2 लाख रुपए की होगी, आप इनोवा लेंगे तो 20 लाख रुपए की होगी, राइट? सो द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, डिजाइन, वर्कमैनशिप आर अवेलेबल। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जब चावल के दाम बताती है तो राशन के चावल के दाम बताती है जिसमें कंकड़ ज्यादा चावल कम। तो आप क्या वो चावल खरीदते हैं राशन के रेट का? नहीं खरीदते। सो गवर्नमेंट का रेट हमेशा बहुत ही बेयर मिनिमम रहता है और बहुत ही अनसाइंटिफिकली कैलकुलेटेड रहता है। तो प्लीज वो राशन के चावल वाली गलती मत करिएगा। अगर आप आपके घर में दावत खाते हैं तो वो राशन के चावल के रेट का तो नहीं होता। Right, right. Sure, one last question, but for everyone who's asking that whether we'll send the recording, yes, we will in fact also make the recording live on our YouTube channel. So the access to all this information would be there.
for public consumption. Shreya, last question. Deep Tree has asked, I want to install solar on my new flat that I have purchased, but recent data has shown that unit consumed is not available. So how do you calculate average monthly unit that is consumed if the recent data is not available? अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हमारे सोलर कंसल्टेंट्स आर ट्रेंड आपका घर और उसमें कितने अप्लायंसेस है उसकी वो क्विक कैलकुलेशन करके आपको एक अंदाजा दे पाएंगे कि अगर आपके घर में इतने बेडरूम है, इतने पंखे, लाइट, एसी, टीवी, फ्रिज, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आपको एक अंदाजन कैलकुलेशन जरूर दे पाएंगे. सो प्लीज डोंट वरी एट ऑल. इवन इफ यू डू नॉट हैव योर कंजम्पशन डेटा, यू कैन गो फॉर a certain suggested capacity by our solar consultant. Please do know, काफी मार्केट में मैंने देखा है कि लोगों को एक्सेस कैपेसिटी बेच दी जाती है. 5 किलोवाट चाहिए था, 7 किलोवाट बेच देते हैं. सो प्लीज डू डू गो फॉर द ट्रस्टेड कैपेसिटी सजेशन. क्योंकि जब ज्यादातर इंसेंटिव होता है कि ज्यादा किलोवाट सोलर बेच दें. हमारे यहाँ सोलर स्क्वायर की सेल्स टीम को कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता ज्यादा किलोवाट सोलर बेचने का. इनफैक्ट अगर हमें एक भी कंप्लेंट आती है कि 3 किलोवाट चाहिए था, 4 बेचा, so we reprimand our sales team members. So there is no incentive in Solar Square to sell higher capacity. Our purpose is to give you a trusted solution. 5 साल बाद जब आपको और सोलर लगेगा, आप हमारे पास आएंगे, ना कि ये सोचेंगे कि यार मुझे गलत सोलर बेचा था या पुअर क्वालिटी का बेचा था. So please don't worry at all. Our solar consultants will guide you. And जब आप कंसल्टेशन में अपना सोलर कैपेसिटी प्लान करते हैं, कई बार मैंने देखा है फैमिलीज एसी या ईवी की प्लानिंग कर रहे होते हैं. तो अगर आप अपने घर में एयर कंडीशनर्स ऐड करना चाहते हैं, डेफिनेटली इन्फॉर्म आवर सोलर कंसल्टेंट्स. एसी इज द बिगेस्ट पावर गजलर. तो एसी खरीदने के पहले सोलर लेना फैंटास्टिक आइडिया है. अबाउट 20% ऑफ आवर कस्टमर्स बाय एयर कंडीशनर्स आफ्टर सोलर. तो वो हमें जरूर बताएं, हमारे सोलर कंसल्टेंट आपको करेक्ट कैपेसिटी एनहांसमेंट के बारे में गाइड कर देंगे. थैंक यू सो मच, Sneha. I actually Yes. have to rush Yes, somewhere. of course. Thank you, Shreya, so much. Thank you, everyone who have attended. We will definitely share the recording. We'll also make the recording live on our social media channel, especially on YouTube. So, yeah, thank you so much, Shreya, for Thank you taking the so time much. out. More than 100, more than 100 participants with us today. Yes, So very, very, very glad to see this kind of participation. Thanks a lot for joining us, and all the best in your solar journey. Thank you. thank you. Bye.